So good evening. We are on the second last day of 2022, and whatever we did, uh, and whatever we'll do our best according to us. We will go wrong 87% times and go right 13% times. So please bear with me. I'm, I'm really, really happy that we have formed a family and we exchange ideas, and more so I keep my bullshitting of 12,000, but it will come because this kind of bullish market cannot remain forever. In my entire lifetime, I have not seen this such markets. So, and another thing, in yesterday in a space, somebody shouted or abused me, calling me a bobra. I stammer. I request everybody, if you have anything to say, anything to hurl at me, please do it. I don't mind. It is a mechanical defect God has sent me with. I cannot overcome it. And over and above that, if you want to abuse me, please feel free. I am all ears. I will like if you abuse me. And at times, if I abuse you back, you will not know how to cry. Anyway, so we'll start with what do we talk here? About the markets, yesterday expiry, Anand said outside bar, inside bar. So I was searching for the bar. One bar I found is a soap bar of Hammam. So वो सोप बार मिला पर इनसाइड आउटसाइड बार नहीं मिला, लेकिन बाजार आज एक ही वो मोमबत्ती में मार दिया. See, these are all made up markets. The person who is rigging it up is the most scared person. He knows if he wants to exit, he will not be able to exit. So that is why this wholesale selling in one candle, or in two candles, or in three candles. So I find it nothing new in it, and mark my words, as time progresses, Jan, Feb, latest by March, we'll see red candles everywhere because there is no volume. Today volume was 40,000 crores. January 1st it will be 30,000 crores. Now, if I am long and if I see such behavior of the market, I'll be scared. And mind you, bears cannot do a thing. They are useless people like me. If you make a mistake, then only we are able to make money. So, vulture is a patient bird. Having said that, bears cannot bring a bear market, and bulls cannot bring a bull market. Bears only will bring a bull market, and bulls will only bring a bear market.
Now, this is such an extended bull market by no stretch of imagination. In any part of the world, in any period, has such a bull market existed. We ascribe various things, various reasons. ये हो गया ना वो हो गया, नहीं होता है ऐसा. कहाँ पर है पैसा? I often attend the spaces of Kamal, where he is discussing individual stocks. And actually, I love that. I love listening to stock ideas. But most of the stock he mentions are down 30, 40, 50% generally. So, my point is if we are down so much, where is the bull market? What are we harping on? ये घट गया, अरे मैं बोला 12,000, मेरे को गोली मारो नहीं तो मैं छोड़ो ना मेरे को. पर तुम्हारा पोर्टफोलियो देखो ना, 50% डाउन है. तुम क्या झगड़ता है मेरे से? ये 12,000 नहीं है 12,000 है. तो ये कमल भाई स्पीकर से क्यों निकल गए? सर कुछ इश्यू होगा टेक्निकल, वापस बुलाता हूँ सर. So I'm saying please be watchful. And most of the newbies, new traders, they don't have any control over their emotions. मैं बोला मंदी तो मैं दुश्मन हो गया. अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई. तुम तेजी बोला, मैं मंदी बोला, आपस में डिस्कस करते हैं ना कि मैं मंदी क्यों बोलता हूँ, तू तेजी क्यों बोलता है. झगड़ने का मतलब क्या है अपने को? आखिर में जाना तो ऊपर ही है. कब कौन चला जाएगा नहीं मालूम. काहे को झगड़ा करते हो? फॉर व्हाट? और मैं वापस शर्म आती है बोलने. मेरे पास बहुत शेयर है, बहुत 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 शेयर है. तो मेरे को मंदी वाला मत समझो. मैं एक रियलिस्ट हूँ कि ये जो अपने सपना देख रहे हैं SIP मनी से, वो कब तक टिकेगा? अभी वो कोई पोस्ट किया था, कमल भाई ने किया था शायद, कि 22,000 करोड़ रुपया निकाला है. अभी ऐसे में क्या होएगा? हाँ, और एक लास्ट बात फिर अपने, कि म्यूचुअल फंड और FI को मिलके 70 लाख करोड़ का स्टॉक है उनके पास. उसमें से 2-3% आ गया तो क्या होगा बाजार का? कौन ले लेगा? सर्वेंद्र 2 लॉट लेगा, शरद शाह 3 लॉट लेगा, समर्थ 1 लॉट लेगा, बाद में कौन लेगा? तो ये अपने बहुत बार बोलते हैं ना कि एंट्री अलाउड है, एग्जिट अलाउड नहीं है. तो ये ऐसा बाजार है. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा बहुत कैश बना के रखिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट. चलिए समझ भाई, ये जो रिक्वेस्ट है वो ले लो ना उनको. सर आई एम नॉट एबल टू सी एनी रिक्वेस्ट सर पेंडिंग. मेरे पास कोई नहीं है पेंडिंग में सर. कमल भाई को भेजता हूँ. कमल भाई कहाँ गए? चलिए बडवाइजर. बडवाइजर बोलिए ना. गुड इवनिंग शरद सर. गुड इवनिंग सर मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बैंकिंग स्पेस. अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बाद सब लोगों की EMIs वगैरह बढ़ी हैं काफी. सो
आगे आने वाले टाइम में लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स में बैंकिंग जो बैंक्स हैं इनकी एनपीएस की प्रोविजनिंग बढ़ जाएगी? समझ भाई बता दो उनको। होम लोन में सर जी होम लोन में इतना नहीं रहेगा, बट whoever has given ओवर लेवरेज्ड लोन्स, लाने 100 रुपीज मार्केट प्राइस है और उसके ऊपर 120 रुपए का लोन दिया है, तो दैट इज ए रिस्की एसेट। सेकंड थिंग, जो मिडिल लेवल इनकम है जहां पर डिस्पोजेबल इतना इनकम बढ़ा नहीं है, यानी 100% आपका इनकम नहीं बढ़ा या 20-30% भी नहीं बढ़ा है, बट ईएमआई का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है, तो वहां पर प्रेशर रहेगा। तो बैंकिंग विल टॉप आउट मैक्स बाय जनवरी एंड या फरवरी में। तो ओके। क्योंकि वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट, उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ज्यादा। अच्छा। जिस हिसाब से बढ़े हैं लास्ट 6 मंथ्स में, इतना नहीं बढ़ेगा, बट बढ़ेगा, बट इट विल टेक नेक्स्ट 3 to 6 months टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज इंडस्ट्री कैन नॉट सस्टेन हाई इंटरेस्ट रेट्स। यस यस। सो दैट इज द वे। तो ओके। मिडिल लेवल जो Tier 3 Tier 4 में इश्यू रहेगा ज्यादा, और Tier 1 में, Tier 2 में इश्यू नहीं रहेगा। Tier 1 में जहां पर होम लोन यानी होम वैल्यू ज्यादा है, बड़ा है, 5 करोड़ 10 करोड़ का घर का वैल्यू है, वहां पर ज्यादा रहेगा इश्यू। नहीं और जो मेरे छोटे वाले हैं सर जैसे मैं 40-50। एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव है अभी, तो वो गुड़गांव में ही वाज सर्चिंग फॉर अ फ्लैट, तो हाँ उनका बजट लगभग 4 साढ़े 4 का था। तो एक तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए लास्ट 1 ईयर में काफी, तो 4.5 का प्राइस सीधा 6.5 6 साढ़े 6 की रेंज में हो गया। दूसरा अब इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हो गए हैं, तो ईएमआई से उनको थोड़ा सा अब मतलब वो लेने का झुकाव कम हो रहा है, मन कम हो रहा है। सो दे आर प्लानिंग कि ठीक है हम 6 महीना साल भर वेट करते हैं, चाहे हम रेंट पे रहें वापस, एंड उस तरीके से। तो बैंकिंग स्पेस का इस वजह से भी लोन डिस्बर्समेंट कुछ कम भी हो सकता है ड्यू टू हाई नहीं, इंटरेस्ट रेट। बैंकिंग से ज्यादा एनबीएफसी के ऊपर ध्यान रखो। द नेगेटिव इफेक्ट विल कम फ्रॉम एनबीएफसीज रेदर देन बैंक्स, ओके। बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनबीएफसीज इज ऑन द हायर साइड। अगर आप प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की बात करते हैं, होम लोन्स बिलो 40 lakhs, तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडसइंड बैंक का जो एएलएफएल है, दैट डिवीजन चार्जेस अराउंड 11 to 12% फॉर होम लोन। हम्म। दैट इज द केस। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच सर। or somebody else, anybody can speak. Sir, can I say something, sir? Yes, yes, always. Sir, good evening to everybody, sir. Or let's have a 2023 year with a positive for all of us. सर देखिए, मैं थोड़ा अपना ब्रीफ में बताता हूँ। मैंने मार्केट में 2008 में एंट्री किया था, जब मैं काम करता था, जब मैंने जॉब चालू किया था, और 2016 में 14 में मार्केट से बाहर निकल गया 8.5 लाख लॉस पे। फिर 2016 से वापस एंट्री किया, और अभी तक हूँ मार्केट में, और टोटल लॉस हो गया 44 लाख रुपीज। ये मेरा लॉस था। अभी मेरा पोर्टफोलियो है लगभग 18 लाख का। मैंने सारे कैश निकाल दिए हैं, मतलब कैश जितने स्टॉक है सारे एग्जिट कर दिया है, और 15 दिन से मैंने खाली एक ही स्ट्रेटेजी बनाई है, इंट्राडे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, जिसमें मैंने लगभग 3 लाख रुपए कवर किया है। तो सर आप लोग से सजेशन है, एडवाइस है, मार्गदर्शन है, चाहता हूँ, गाइडेंस चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी अच्छी है कि हर दिन कैश लेके जाओ, नुकसान भी उठाओ। कभी कभी मैंने बहुत बड़ा नुकसान भी उठाया है, लेकिन नेट नेट कैश में जा रहा हूँ, और स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो करता हूँ। थैंक यू सर। 2-3 महीना लगेगा, 18 लाख भी पूरा हो जाएगा। आपको क्या पता ऑप्शन के बारे में? आपको 2 सवाल में पूछूं, आप जवाब दे पाओगे? सर मैं ऑप्शन का ट्रेड मोस्टली फ्राइडे को लेता हूँ।
चालू रखो और क्या. आई एम अगेंस्ट ऑप्शन सेलिंग और बाइंग. इट्स अ short way for disaster. Thank you so much for your suggestion, sir. Thank you. I'll keep in mind, sir. Yes. Yes. शरद भाई मैं इनको बोलूं कुछ. हाँ. पहले तो इनसे ये समझना कि ये करते क्या हैं, क्या करते हो आप. मैं आपका नाम नहीं देख पाया, क्या करते हैं आप, वो थोड़ा बताएंगे. संदीप जी. सर मैं मुंबई में हूँ और आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड बोल सकते हैं. मेरा एक एडवर्टाइजिंग फर्म है. तो आप अपना मेन काम कब करते हो, जब आप दिन भर बाजार में लगे रहते हो, अपना मेन काम आप एडवर्टाइजिंग वाला काम कब करते हो. सर ऐसा है ना कि अभी हमारा फॉर्मेट ऑफ वर्किंग चेंज हो गया है. तो मतलब हफ्ते में 2 दिन काम कर लेता हूँ, 3 दिन काम कर लेता हूँ और 2-3 दिन फ्री मिल जाता है. तो तब है ना, तब मैं ये देखता हूँ मोस्टली. बाकी तो मतलब काम पे ही ध्यान रहता है, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन तो मिल जाता है इसके लिए. नहीं तो आप रेगुलरली बाजार नहीं देख पाते हो, तो आपका बाजार से टच आता जाता रहेगा ना फिर. तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको स्क्रीन पे थोड़ा रहना पड़ेगा. और ये जो आपने रिकवरी बताई है अपनी, इस पे कितना कैपिटल आप यूज कर रहे हो और कितना टाइम लगा आपको रिकवर करने के लिए ये 3 लाख. सर ये 15 दिन लगा है 3 लाख रिकवर होने में. और कैपिटल मैंने अपना जो 15 मतलब अभी देखिए मेरा पोर्टफोलियो 15 लाख हो है, 12 लाख तक चला गया था, अभी 15 लाख हो गया है. और ये 15 दिन में ही मैंने रिकवर किया है. मैं लॉट ज़्यादा लेता हूँ और जब देखता हूँ मार्केट कंडीशन क्या है, मैं 12 के 1 के बीच एंटर करता हूँ. मैं मॉर्निंग को कभी एंटर नहीं करता. और उस टाइम वही आधा क्या घंटा एक, जैसे मैंने आज 2:30 बजे एंटर किया और उसके बाद जब ये 3 बजे गिरा तब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ. मैं ज़्यादातर पी लेता हूँ. आप बैंक निफ्टी के पुट्स लेते हैं. दोनों सर, बैंक निफ्टी निफ्टी. तो क्या रिस्क रिवॉर्ड क्या रखते हैं, व्हाट इज द स्टॉप लॉस टारगेट यू कीप. सर जैसे आज 1850 का मैंने पुट लिया था, सॉरी 250 का पुट लिया था. और उसपे मैंने 20 रुपए का ऊपर का स्टॉप लॉस रखा था और नीचे के लिए स्टॉप रखा था. ऊपर के लिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं रखा था क्योंकि मुझको लगा था कि आज मार्केट गिरेगा और मैंने बोला ऊपर अगर चलता जाएगा तो अपने लिए अच्छा ही है, मतलब ये गिरता जाएगा तो. और ये बढ़ा तो अच्छा खासा बढ़ा, आज मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ. तो आई एम जस्ट शेयरिंग कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ डू यू फील दैट दिस डज वर्क. बिकॉज मेरे को जब स्टॉप लॉस लगता है, जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने लगभग 56,000 का नुकसान भी उठाया लेकिन निकल गया बाहर. नहीं फेयर इनफ. तो वही तो बोल रहा हूँ, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, दिन में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितना मैक्सिमम लॉस आप बेयर करेंगे. बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू आर टेकिंग लेवरेज. कितने लॉट लिए आपने, इफ आई मे जस्ट आस्क. सर आज तो मैंने लगभग 3,500, फिर बीच में वो लिया, मतलब कुल मिला के लॉट के हिसाब से देखा जाए तो 3,500 200-300 निफ्टी आपने किया ना, 3,500 निफ्टी किया आपने. दोनों किया सर, बैंक निफ्टी भी किया था, दोनों किया था. लेकिन मैं लॉट कभी 20 लेता हूँ, कभी 50 लेता हूँ, कभी 100 भी ले लेता हूँ. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई साहब, आपको मालूम है कि आप एक्सपोजर कितना ले रहे हो. यू नो योर एक्सपोजर, व्हाट यू आर टेकिंग व्हेन यू बाय एन ऑप्शन, व्हाट इज द एक्सपोजर दैट यू आर टेकिंग. हाँ सर, कैश में ये तो कैश का एक्सपोजर है ना, मतलब मेरे को मार्जिन में नहीं, मैं अपने कैश पे काम कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है मेरा कितना अमाउंट प्रीमियम मेरा अटका हो. 5 लाख का, सर्वेंद्र जी 5 लाख का होगा ये कैपिटल डिप्लॉय. करेक्ट. नहीं तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ, आप जब ऑप्शंस लेके चल रहे हो और किसी ने अगर आपके ऑप्शन ट्रिगर नहीं कर पाए आप किसी कारण से, मान लीजिए अभी आप सब लोग को लगता है कि ऑप्शन ट्रिगर हो जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है. स्टॉप लॉस किसी ने ट्रिगर होने के बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वॉल्यूम्स ड्राई हो गए, तो क्या करोगे. आप 100 लॉट लेके बैठे हो, आपका एक्सपोजर वैल्यू 100 लॉट का है. अगर आप 50 लॉट भी निफ्टी कर रहे हो, व्हाट इज योर एक्सपोजर वैल्यू. 20 लॉट निफ्टी पे तकरीबन 90 लाख हो गया ना, 80-90 लाख जो भी है, 85 लाख 90 लाख, मतलब 1 करोड़ पकड़ लो आप. 20 लॉट करते हो तो आपका 1 करोड़ का एक्सपोजर है. तो आपको प्रॉफिट लॉस 1 करोड़ के हिसाब से होगा. समझे. आप पहले समझ लो, 12 लाख की कैपिटल, 15 लाख की कैपिटल पे आप 1 करोड़ की पोजीशन ले रहे हो. योर एक्सपोजर वैल्यू इज 1 करोड़. वो अलग बात है, आपने प्रीमियम भरा है तो आपको लगता है यार मेरा तो खाली 5 लाख रुपए जाएगा. बट 1 करोड़ की वैल्यू पे आप जब बेट्स ले रहे हो तो आपको लॉस भी 1 करोड़ पे हो रहे हैं. 1 करोड़ के नोशनल वैल्यू पे आपको लॉस होंगे, ना कि
आप जो सोच रहे हो XYZ, तो खुदा ना खास्ता अभी किसी आप लोग ने अभी स्टॉप लॉस जंपिंग किसी ने देखी नहीं होगी ना लाइफ में। जब स्टॉप लॉस जंप हो जाते हैं और आपका ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट होगा, वो एक खराब दिन अगर आपकी लाइफ में आ गया तो आपका ये बचा कुछ कैपिटल का भी आधा 70% वाइप आउट हो जाएगा। सो आप इतना ज्यादा लेवरेज मत लो, करो ऑप्शंस, बट then don't take so much of leverage. With this amount of capital, I don't think you should be doing more than 10 odd lots of option buying or selling, whatever. बाकी it is up to you. बाकी it is up to you. तो अभी आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने उतना लेवरेज लेके 1 लाख कमा लिया। अरे भाई, आपने 1 लाख जो कमाया है उसके लिए शायद आप 50-50, 100 लॉट ले रहे हो। आप 5 करोड़ की पोजीशन पे अगर आपने 1 लाख कमा भी लिया है, सो इट्स लकीली अगर आपने कमा लिया है, डोंट थिंक दैट लक विल ऑलवेज बी इन द विनिंग फेवर। जिस दिन अगेंस्ट गया उस दिन, और जिस दिन स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हो उस दिन, किसी दिन आपके ब्रोकर का सिस्टम बंद हो गया उस दिन, अभी हुआ है ना लोगों के साथ। आई डोंट वांट टू नेम ब्रोकर्स, बट लोगों के यू आर नॉट लुकिंग एट द सिस्टमिक रिस्क। किसी दिन आपका नसीब खराब है, ब्रोकर का सिस्टम बंद हो गया, सौदा स्क्वायर अप ही नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? सो उतना सर उसके लिए भी मैंने सोचा है, मतलब आई नो दिस थिंग हैपन। तो मेरे पास 2 ब्रोकर है, एक एंजल ब्रोकिंग है और एक जीरोधा है, और मैं वेरी आधा गुड, ट्रेड वेरी गुड आधा पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अब आप देखिए अब आप कैसे फंसेंगे। लॉन्ग साइड आपका ट्रैप है, शॉर्ट साइड तो 50 लॉट बेचने के लिए आपको पूरा 1 करोड़ का मार्जिन चाहिए। दूसरे के यहाँ बेचने जाओगे तो 1 करोड़ का मार्जिन चाहिए स्टॉप लॉस करते वक्त। कहाँ है आपके पास 1 करोड़ रुपया? सी, दीज आर द ट्रैप्स दैट यू विल फॉल इनटू। आपका मार्जिन किधर है? जीरोधा आपको शॉर्ट थोड़ा करने देगा, एंजल की पोजीशन जीरोधा थोड़ा काटने देगा आपको ऑप्शन की सेलिंग की। आपका नहीं वहां सर, बाइंग है, यहाँ आपको सेलिंग करनी। यहाँ आपको जब आप सेलिंग करनी है तो आपको 1 करोड़ रुपए मार्जिन रखना है दूसरे बुकर के यहाँ सेल साइड स्क्वायर अप करने के लिए। दीज आर द फाइन स्मॉल नुआंसेस जिनको आपको सोचना पड़ेगा ये सब करने के पहले। मैं ये बिल्कुल बोल नहीं रहा हूँ कि आप करो कि नहीं करो। I am for the listeners, so many listeners. I am just trying to tell you this is how people get trapped with multiple legs, multiple brokers. It will screw up your brain someday. One bad trade will screw up. One bad event, one bad default, one broker, one system going here and there. There's something called as a systemic risk. With this much of leverage, you are playing with risk every day. And if that Six Sigma happens against you, आपका 70-80% कैपिटल एक दिन में वाइप आउट हो जाएगा। ओके, सो डोंट डू दिस। आप कम पोजीशंस में करिए, थोड़ा कम पैसा कमाइए, घाई मत करिए। अब भाई अपनी एक काम कर, तू डीएम कर मेरे को, मैं सिखाता हूँ तेरे को पैसा बनाना। सो सर थैंक यू फॉर द एडवाइस, मैं ये इट्स अ फॉलो ब्रदरली करूंगा। एडवाइस। आपको समझ गए आप? जब आप जीरोधा में यहाँ का स्टॉप लॉस काटने जाएंगे तो आपकी सेल पोजीशन है फ्रेश, आपको 1 करोड़ का मार्जिन लगेगा 20 लॉट के लिए। सॉरी, जो भी है 20 लॉट के लिए आपको 20 लाख का मार्जिन लगेगा, वो आपके पास है नहीं। 20-22 लाख का मार्जिन लगेगा ना, 1.5 लाख भी पकड़ के चलो आप, तो आपको 30 लाख का मार्जिन लगेगा। तो वो जीरोधा में 30 लाख होएगा तो आपका वो स्टॉप लॉस का सौदा कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं। वो समझ रहे हो ना आप? नहीं सर, मैं समझ गया। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। आई स्ट्रिक्टली फॉलो दिस थिंग। थैंक यू सो मच सर। अरे आप डीएम मारो ना मेरे को, आई विल टेक केयर ऑफ यू। बस यू आर इन सेफ हैंड्स, यू आर इन सेफ हैंड्स, करो आप। चलो अभी नेक्स्ट वन। Hello, thank you for allowing me, sir. Hi, Samar sir. Hi, Sharad sir. My question is to Sharad sir. Sir, which sector you are bullish on? I mean, not immediate, irrespective of Nifty up होगा या down होगा, कौन सा sector पे आप bet लगाना चाहेंगे, sir? अभी मैं बेट लगाने का सोचू ही क्यों? जब बाजार मेरे को डाउनवर्ड लगता है, Okay. why will I think? And unfortunately, I am amongst the few who cannot see the future. मुझे दिखता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कल क्या होगा। And it's too early to look for sectors and all that. You wait for a month or two, you will shiver in your pants कि ये शेयर बाजार है क्या है। आज तो एक छोटा सा ट्रेलर था, 100 पॉइंट का कैंडल अपने कितने सालों के अरे कितने महीनों के बाद देखा। एंड सर वो ऑप्शन सेलर एक है, उसने 85 lakhs का लॉस किया था एक ही 5 मिनट में ऑप्शन सेलर ने। तो ठीक है, 7 लाख के प्रॉफिट, 7 लाख के प्रॉफिट से 85 लाख का लॉस, मतलब मोटा मोटी 1 करोड़ रुपया 5 मिनट में। यस तो यस। क्या हो गया?
अगर नहीं अगर सौदा किया होगा तो, अगर जेन्युइनली सौदा किया होगा अरे तो मैं भी बोल देता हूँ ना कि मेरे को 6 करोड़ का लॉस हुआ, क्या फालतू है, छोड़ो ना यार। ये ट्विटर का तुम समझते हो नहीं यार। सर फिर आप किस बेस पे स्टॉक्स एनालाइज करते हैं सर? अगर आप मतलब आपका एक्सपीरियंस है इसलिए पूछ रहा हूँ सर आपको, ताकि हमको नए लोगों को थोड़ा गाइडेंस मिले। मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, बस ये दो बात है। If product is good, if management is good, go and buy. Cheap, expensive, anything, buy. उतना ही है दोस्त, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर वो रिजल्ट्स पे आप डिसीजन लेते हैं सर, अगर मान लेते हैं प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छा है, एंड इट्स लेट्स से इट्स ड्यू टू सम और अदर रीजन इट्स डूइंग बैड, so Q on Q, do we take decision or considering the company or the management, we continue? I will continue if I like the product and if I like the management. Irrespective of the results, I will hold. I will not sell. It's like falling in love, yaar. Once you fall in love, now your partner is good, bad, ugly, doesn't matter. You're fallen in love. तो साथ में ही रहना है, लवर के साथ ही रहना है। Yeah, I understood. Sir, last question. Diversified आप रखना अच्छा है सर क्या concentrated? Because अगर capital कम है, let's say 10 lakhs, तो मैं उसको डाइवर्सिफाई करूंगा तो मेरा रिटर्न कम होगा। अगर मैं मानते हैं मैंने स्टॉक को एनालाइज किया एंड वी पर्सन इज कॉन्फिडेंट, तो 4 स्टॉक रखो, नॉट मोर देन 4। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, दूसरा भाई। Good evening, sir. My name is Partha. I have a question, sir. Like today, as you said, we seen a big candle in 5 minutes. Just want to understand what is the big player psychology behind it. Actually, entire day उनको 75 5 minute candle है. एक ही candle में why does he want to sell so much of quantity in that candle itself? That is one question, sir. And second thing, 2 weeks ago, you have said that there can be a chance of some big bad news to come out. कुछ scam ऐसा कुछ आपको कुछ मिला कुछ? Because I couldn't get anything yesterday. नहीं मिला। Okay. It is work in progress. Okay, sir. Okay. Thank you. और एक जो कैंडल में निकलता है ना, उसको जरूरत है, क्योंकि वो धीरे धीरे बेचने को जाएगा ना, वो बिकेगा नहीं उसका। He is in a rush. Now why he was in a rush, he would know it better. But I would conclude that anybody selling like this, it is a cause of concern for everybody. That's it. No, Sharad bhai, I will add this one more point कि people have to also understand कि market में नीचे depth नहीं है बिल्कुल। If 5 lakh Nifty can hit 5 lakh Nifty can hit 100 points on the Nifty, I will be really worried for people who do large trades, because 5 lakh Nifty में 100 point निकल जाता है। The impact cost is huge, and there is no liquidity downstairs. कोई लेने को खड़ा नहीं है, which is a big cause of concern. I said there is no volume in the market, so it says everything. या नीचे लोगों के, मैं कह रहा था कि लोगों के पास गट्स नहीं है, खाली बातें करते हैं, क्वांटिटी लेने का गट्स नहीं है, नीचे बाय करने का, खाली बातें हैं तेजी की। सर्वेंद्र भाई, after 18-19 months of a bull run, it is very scarce to find people who have money. Everybody will say 50% down है मेरा स्टॉक, ये वो, तो पैसा भी नहीं है लोगों के पास। Yeah, people are committed. I think yes, people are committed. That's a better word. Yeah, चेतन भाई बोलिए। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार।
आप जो सर अवेयरनेस फैलाते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ में मेरा एक क्वेश्चन है। मैं आपको जब से आप ट्विटर ज्वाइन किया है तब से आपको सुन रहा हूँ, हमेशा सुनता हूँ। आप एकदम सच्चाई के साथ बहुत सारी बातें बोलते हैं और सारी सच है एकदम। लेकिन आप जो सर जिस मोटिव मतलब आपका उद्देश्य क्या है जो ट्विटर स्पेस करते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं आप? तो मेरे हमेशा दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन आता है कि मतलब जैसे मैं ज्वाइन किया ट्विटर तो मैं तो नॉलेज लेने के लिए, सबकी बातें सुनने के लिए और कुछ गेन करने के लिए आता हूँ। और आप जो स्टॉक्स के लिए या रिस्क के लिए बात करते हैं, वो उसका मोटिव क्या है आपका ट्विटर पे स्पेस पे आने का या ट्विटर पे लोगों के साथ जुड़ने का? उसका उद्देश्य क्या है? उस पे भी थोड़ा बताइए ना सर। एक मैंने क्या देखा ट्विटर में कि पूरा स्पेसिस और ट्विटर ग्रीन ग्रीन है। सब बोलते ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। कोई नहीं बोलता है कि ये बेच दो, ये लेने के लिए आपको हानिकारक है। और ये सब शेयरों के पीछे सच्चाई क्या है वो किसी को अंदाजा ही नहीं है। तो उद्देश्य यही था। और बाद में तो ऐसा हो गया ना कि हमको भी आदत पड़ गई लोगों से बातें करने की। बस यही था, और तो कुछ था नहीं मेरा। या गुंजन चटवानी। रो कभी 0001। हेलो। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन सर्वेंद्र सर से। सर आपका व्यू क्या है मार्केट पे अभी? गुड इवनिंग शरद जी। गुड इवनिंग शरद जी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन सर्वेंद्र सर से। सर अपना व्यू बता दीजिए। आपका व्यू क्या है मार्केट पे अभी? गुड इवनिंग शरद जी। गुड इवनिंग शरद जी। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। मैं आता हूँ, मैं व्यूज देता हूँ। आ रहा है हेलो। क्या आवाज? हाँ अभी आ रहा है सर। रो कभी बोलिए आप। सर वो सर्वेंद्र सर से क्वेश्चन है, उनका व्यू क्या है मार्केट पे, अगर बता दीजिए सर। Just give me सर आवाज आ 20 रही है minutes. मेरी? I am into something. मैं आता हूँ वापस स्पेस। Just ओके सर। क्या गुंजन भाई? या शेल। हेलो सर, नमस्कार सभी को। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी हमारा निफ्टी वगैरह ये सब काफी ऊपर है, अभी ऑल टाइम हाई के लगभग ही है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं यूएस मार्केट में अगर करना चाहूँ तो वो मोतीलाल ओसवाल का जो ईटीएफ है नेस्डैक वाला, वो सही रहेगा या कोई और, या मतलब करना भी चाहिए कि नहीं यूएस में थोड़ा बहुत कंपेयर टू जो वैल्यूएशन है? जैसे यहाँ पे टेस्ला वहाँ पे 30-35 पी पे चल रहा है और हमारा यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस चल रहा है 400-500 पी पे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फरवरी तक वेट करो शेल। जनवरी मिड या एंड ऑफ जनवरी नेक्स्ट मंथ या फरवरी। जल्दी मत करो। अगर सिप कर रहा है सिप चालू कर दो आप। नहीं, मैं यूएस में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वहीं के लिए बोल रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ की बात कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ यू कैन स्टार्ट ए सिप इन दैट। ठीक है सर, थैंक यू जी। और सर पूछना था कि जैसे आज कुछ कोर इंडस्ट्री जो कोर इंडस्ट्री में ग्रोथ का कुछ आया था पिछले, आज आया था। और जो कुछ भारत सरकार ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कुछ मार्केट पे आपको जो होता हो थोड़ा बहुत मुझे बता सकते हैं?
इतना विस्तार में नहीं बता पाएंगे भाई साहब, बहुत स्पीकर्स है। अच्छा सर, ठीक है। वैसे अगर एज ए जनरल आपको लगे कि बताने लायक कुछ तो बता दीजिएगा बाद में। थैंक यू जी। ओके सर। या संतोष। शरद जी नमस्कार। Thank you, Sarvendra. You have given a very good heads up on margin and systematic risk about how one thing can mess up the remaining 99% gains. So yesterday we were talking about candlestick pattern, and I was talking about how a bearish candlestick pattern is getting slightly bullish, and looks like I was wrong, definitely wrong, where the 3 p.m. Change that almost brought the current month candle to the lowest of the last month. So I was basically suggesting put sell, which I did today from morning, and also I did sell call option in the morning too along with it. So I'm somehow in a profit of a good 2%, which I'm still carrying. Yeah, Earth. Yes. Yeah, hi sir. Hi everyone. So I was, just watching on Twitter. Some data was there that FIIs have exited highest in 2022. However, markets are still वहीं पे है. मतलब there is no major correction. So because obviously DII and retail strength is increasing, investments from retailers are increasing. So my question is to Sharad sir that is it a possibility that there will be a time correction in Indian markets and may not be price correction, or price correction is imminent because valuations तो justify नहीं करते currently, but markets may be at similar level for 1.5-2 years and time correction would happen. So that is my question. Thank you. Do you think if you have tons and tons of money, shit will become gold? Shit will always remain shit. I agree, sir. Valuations are too high currently. But the point is that people are still, at even this level, SIPs are getting. Yeah, sir. Something or the other will give in, and market will correct. Don't forget one thing. Market is nature. Right, sir. Just like nature. Too much you mess around, it will screw you. So wait for some time. It will happen. Don't worry. Sure, sir. Thanks. सर आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग सर, जो टाइम करेक्शन की आप बात कर रहे हैं, टाइम करेक्शन नॉर्मली हैपेंस जब ग्रोथ अच्छा हो, तो वो टाइम पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सुपरसीड कर जाता, मतलब ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, तो टाइम पे टाइम करेक्शन और अर्निंग से प्राइस एडजस्ट हो जाता है. उतना ज्यादा ग्रोथ कहीं भी है नहीं अभी. छोड़िए ना यार ऋषिकेश भाई, आप भी क्या बात करते हो. अभी 80-90 का पी को क्या तंबूरा टाइम करेक्शन होगा. तो मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं भी तो वही बात बोल रहा हूँ. अरे ऋषिकेश भाई, आई एम अग्रीइंग विथ यू. जस्ट आपका पॉइंट ही बोल रहा हूँ कि टाइम करेक्शन, काय का टाइम करेक्शन. अगर सब लोग अल्लाह अल्लाह नहीं पुकारेगा तो मेरा नाम शरद नहीं. ये बाजार इतना भयानक है, इतना भयानक है. I have got lot of experience of 46 years now. I can read the market. It's not that I only judge 12,000. No. I see the market. It's pathetic. मैं अगर 5,000 लॉरस लैब
बेचने को डालता हूँ, एट द रेट वो फील होने को 12 मिनट लगता है, तो देयर इज नथिंग टू बी सेड, दिस इज द मार्केट। अभी किसी दिन आपको 4 लाख बेचना होगा तो क्या होगा? वेरी 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 डाइसी मार्केट। प्लीज कीप सम कैश रेडी विथ यू। आनंद भाई बोलिए, आप आए बाहर आए। Good evening, Sharad bhai. Good evening, everyone. There was somebody who was talking about candles. I just had one suggestion for him. But before you jump into just candles, I suggest people to read one book called The Secret Code of Japanese Candlesticks by Felipe Toledo. Maybe you can search it, maybe you can get it on Amazon. I don't advise to get a pirated copy because pages miss in pirated copies. But read this book by Felipe Toledo, Secret Code of Japanese Candlesticks. That is when you will understand which candle pattern to look at what phase in the market. The market has 5 different phases according to the Japanese candlesticks, and nobody, including Steve Nissen, nobody teaches about these 5 phases of the market and the 5 masters of the market from Sansein to Sanzen. So, from Sansein to Sanzan. So, if you understand these 5 phases of the market, you will actually be become more proficient in applying the Japanese candlesticks. सेकंड क्वेश्चन, ये जो मार्केट टाइम करेक्शन लगाता है, बस ये टाइम करेक्शन क्या होता है? मैंने आज तक टाइम करेक्शन देखा नहीं है। करेक्शन मतलब करेक्शन होता है, प्राइस में होता है। सी बेसिकली मार्केट जब ये चार्ट देखते हो तो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि मार्केट बुलिश है, करेक्शन मतलब नीचे जा रहा है। तो फिर अगर अप ट्रेंड बुलिश है, करेक्शन डाउन ट्रेंड है, तो साइडवेज मार्केट क्या है? So you have to understand there are 3 different phases of the market and play accordingly. Right now, the market is in a distribution phase. It is making the mountains or which is making the peaks, which again, who was the candlestick person, you will be able to understand. Market is making what we would call the 3 Buddha pattern or the 3 mountains or the 3 peaks. So this is clearly a state where the market is telling you that it is going down. So approach from any theory of the market, it will give you the same indication. Huge divergences on the monthly chart, huge divergences on the weekly chart, lower volume at market highs. From any theory of the market, you can see that this market is screaming there is something big which is going to happen. Plus, this screaming has been going on for almost 8 months. What 8 months? It's 13 months now since October 2013, 14 months. October 2021 से ये market कुछ किया नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं जाके इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का एक डिक्लाइन आएगा जब बैलेंसिंग होगा, स्पेशली बिकॉज द वैल्यूएशंस आर हाई। ये बैलेंसिंग होना चाहिए बहुत जल्द। एंड आई स्टिल आई एम ऑफ द बिलीव दैट मार्केट विल ड्रॉप डाउन टू 15200, जहां पे पहला सपोर्ट को थोड़ा नजर में आना चाहिए। सो वेट फॉर दैट। शरद भाई इज टॉकिंग अबाउट 12,000, 15,200 is what I am looking at. There are many other ways of explaining the same thing which is happening in the market. Interest rates are going up, things are going pretty bad. There is lesser and lesser interest in the markets. Yes, SIPs are going on, but it is the retail which always comes at the high and it always gets trapped. And the smart money is always giving you, doing distribution at the top. So understand the whole scenario. Don't look at it on a one day basis or a 2 day basis. 2 दिन में मार्केट का व्यू नहीं बनता है, 2 दिन में सिर्फ तुक्का लगता है और ट्रेडिंग होता है। Yeah, So Anand, thank you. I was the one, who was speaking about the candlestick, Santosh here.
Yes, sir. So what was the book that you were talking about? Can you please repeat that? Felipe Toledo. Felipe Toledo is a Japanese guy. He's written a book. It is translated to English. It is called The Secret Code of Japanese Candlesticks. It's a yellow colored book. You will find it on Amazon. Super. Uh, We'll think of reading it, definitely. Yeah. So Thank you so much, Anand. there he talks about the five masters: Sansen, Sanzan, Sanku, Sanpo, and Sanpe. Now these are five different phases of the market. So the market basically is a journey from the three valleys to three mountains, and between the three mountains you have which are one end and the other end of the market. You have these three between these two phases ends of the market. You have three masters who guide the journey of the market from bottom to the top and top to bottom. So each one of them has their own servant. By what they mean by the servant is each one of them has their own candlesticks. So someone has Doji as his servant. One of them has the Maribozu or the bullish engulfing as his servant. Someone has something else as a servant. So each one has a typical phase where it is most important. Most of the time, people don't understand the phases of the market and just get caught in one of the basic 2-bar pattern or the 3-bar pattern, and it doesn't work. That is not the true way to apply. Read the book, you will get a lot more in detail. Great. Sure to. Thank you so much for the suggestion. And Anand, people like me who don't know candlestick, what should you do? Well, why you should not do anything. You know more than सर candlesticks. आप ऑपरेटर हो सर आप क्यों चिंता करते हो? In one of the book that Santosh Nair had written, no, Sharat ji, he talks about talking to a operator, and he tells operator that sir आपका stock है वो double bottom बन रहा है, and operator asks him back like what does it even mean? So you don't have to really worry about this, Sharat ji. Not really speaking. I have seen the finest of traders in the world, and I have traded on the floors with some of the greatest names that you read the books written by them, and I have seen. Truly speaking, there is no good operator. There are market makers. There are no operators for the frontline stocks. There are operators for the third rung and a fourth rung stocks which have no practical value. So don't pay attention to this operator. There is no operator for Reliance. There is no operator for Nifty. I'll take a bet on that. There are people who are interested for a short time. Yes, they do influence for a very short while, but nothing can be done that the operator controls the movement of the market for months and weeks and months together. Doesn't happen. But Anand, for starters, I will order a green candle and a red candle just to have a feel of it from the market. अरे कल न्यू ईयर है, ऑर्डर करो हरा भरा कबाब, मैं आ रहा हूँ खाने के लिए. आ जाओ. And Sharat ji, just 1 minute, please. Good comeback, Samartha. You look very humble now. I mean, like, in fact, I liked what you tweeted yesterday that, you know, you're not going to host because you were wrong. Don't do that. I mean, like, we all go wrong. Good to see you here. That's why I joined the space to just tell you. Kudos. Yeah. Santosh ji, I will be there only for Sharat sir. No one else. I will not be hosting any spaces. Just for Sharat sir, I am here, sir. Same here. Me too. चलिए अभी मुकेश भाई बोलिए. MU दिखता है मुझे, पूरा नाम नहीं दिखता है. सर नमस्कार सर. नमस्कार, बोलिए. सर ये MSME के बारे में कुछ बताइए ना सर. ये मतलब MSME के IPO आते हैं थोड़े से. नहीं, अपने को आइडिया नहीं है. आइडिया नहीं है एक्चुअली सर. ये कंपनीज मतलब कितना ही गुना बढ़े जा रही है. जैसे हमारे राजस्थान मेरे लोकल भिलवाड़ा की एक कंपनी है SRD, शंकर लाल रामपाल डाइकेम. 6 रुपए पे था सर, वो 180 रुपए पे ले गए 3 साल के अंदर. ठीक है ना सर जी, मोक्ष ओवरसीज का IPO आया था 130 रुपए में. उसमें सेलर सर्किट लगा था.
नहीं, तो छोटी ये सब बातों का मतलब हम लोग ये सब देखते नहीं है यार। नहीं सर, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना सर, अरे एमएसएमई चलने दो ना, इसलिए ट्रेंड चलता पूछा। है, हेरोइन बेचने का भी ट्रेंड चलता है, तो हम हेरोइन नहीं बेचेंगे। चलिए निकाल दिया, चलो। शरद कुले। हेलो एवरीवन, हेलो सर। मेरा क्वेश्चन वो बैंक निफ्टी पे था। मतलब सी आई मीन अक्रॉस द ग्लोब आई मीन द इंटरेस्ट रेट्स आर increasing, and in the India, I mean India again, I mean is the highest interest rate if you look at the other developed country, and I see most of the times बहुत बार क्या होता है कि यहाँ से फंड, मोस्ट ऑफ द फंड जो होते हैं वो इंटरेस्ट रेट लेने के लिए भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, एफआई का मोस्टली। इफ अभी यूके में देखो 6% है almost, if you look at, and base rate of Bank of England is around 3 point something. Okay, तो ऐसा क्या है कि मतलब बैंक जो है इतने बढ़ रहे हैं, मतलब व्हाट चेंज क्या हुआ है, मतलब और आपका क्या व्यू है, मतलब इफ यू गो फॉर 2-3 months डाउन द लाइन ये कितना मतलब नीचे जा सकता है? ये 2-3 months नीचा जाएगा और ये सब ओवर हाइप्ड है अपने वहाँ पे। शरद जी, हाँ जी, जस्ट टू ऐड व्हाट शरद सर सेड कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना लोन का, होम लोन का, तब आपका होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, बट आपका एफडी का इंटरेस्ट नहीं बढ़ता नहीं है। उस हिसाब से नहीं बढ़ता जिस हिसाब से मतलब होम लोन का बढ़ता है। जैसे पेट्रोल का होता है, हाँ। जैसे वो बढ़ गया, क्रूड का अपना पेट्रोल का बढ़ गया, लेकिन कम होने के बाद कम नहीं होता। सेम अप्लाई टू जो रिसीवर होता है, उसको तो नहीं कम ही नहीं, होगा। वो कम हो जाता है, नई लोन में कम हो जाता है जब कम होता है तो। बट आज के दिन में अगर आप लोन लेने जाते हो तो उसको होम लोन में 8.5% देने पड़ते हैं, बट एफडी अगर आपने 6 महीने पुरानी की है तो वहां पर तो 6% ही आपको मिल रहे हैं। करेक्ट। तो उसकी वजह से मार्जिन्स बढ़ गए बैंक के, इसलिए वैल्यूएशन अप गया है उनका। बट दिस फ्रोथ विल सेटल डाउन इन द नेक्स्ट 1 or 2 months। क्योंकि वो एफआई के लिए तो अट्रैक्टिव कुछ भी नहीं है, मतलब बैंकिंग सेक्टर इफ यू गो ऑल टुगेदर इंडिया में। Yeah. Unfortunately, I don't like banking stocks. Okay, sir. It's a useless piece of shit. नितिन भाई बोल, NIT बोली। नीच लवाडिया, अनम्यूट कीजिए सर। यस सर। बोलिए सर मेरा क्वेश्चन आईएक्स के रिगार्डिंग था। हेलो, क्या करना है सर आपको? नहीं सर, मेरा आईएक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। मेरा होल्डिंग है उसमें, तो 3 दिन पहले कुछ न्यूज मैंने रीड किया था कि आईएक्स कार्बन और ग्रीन एनर्जी में बिजनेस में डाइवर्ट किया है, तो फ्यूचर के लिए रख सकते हैं या? उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, क्या किया? ये पीछे आवाज आ रहा है भाई बहुत। आईएक्स ने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है टू डू ऑल दिस बिजनेस, तो आप 4-5 साल तक वेट करो और ठीक हो जाएगा। चलिए अंकित भाई। सर ट्विटर पर सर सभी को दिन का रोज का लाखों रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी स्पीकर से कि साल एंड है तो कितना रिटर्न आया है, सभी अपने क्वेश्चन के साथ वो भी बताएं। अरे मैं आपको अपना पूरा बैलेंस शीट, बिल, क्या खरीदा, नहीं सब नहीं दे योगेश भाई टाइम नहीं है, रहने दो। गुंजन जी आपको कुछ पूछना है? आप आए थे पहले, फिर बाद में चले गए। गुंजन चटवानी जी अनम्यूट कीजिए। प्रशांत जी आप बोलिए। हाँ समझ जी, एक्चुअली अभी वो जो आनंद जी बोल रहे थे ना रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके लिए एक मैंने छोटा सा एफएनओ का डेटा भी आज मॉर्निंग में शेयर किया था कि जो निफ्टी 7 नवंबर को 18,200 से एक लाइफ हाई बनाया था,
और आज 18,200 पे जो था, जो प्राइजेस थे स्टॉक्स के F&O के खाली, उसमें अप्रोक्सीमेटली 65 स्टॉक ऐसे थे जो 5% डाउन थे और 33-34 स्टॉक ऐसे थे जो 5% अप थे ऑन द सेम लेवल। ऑन द सेम वे अगर मैं जो भी देखता हूं तो नेगेटिव वाले डबल स्टॉक थे, पॉजिटिव वाले आधे स्टॉक्स थे। इसका मतलब क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं उनकी बात को थोड़ा सा और इसमें डेटा के साथ ऐड कर रहा हूं। गुड, थैंक यू। कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डेफिनेटली सर भी बहुत टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन ये जो टाइम है, क्योंकि हो क्या रहा है कि एक दिन निफ्टी 200 पॉइंट नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन बुल्स आगे आते हैं, एक दिन बियर्स आगे आते हैं, और कुछ हो नहीं रहा है, मार्केट को वहीं घूम रहा है। बट सिंगल डे 400-500 पॉइंट, आज जो 100 पॉइंट गिरा, द सेम वे 2020 में निफ्टी जब 500 पॉइंट गिरा था सिंगल डे, उस दिन 25 लाख निफ्टी शॉर्ट हुआ था। तो आज जो 5 लाख हुआ है और वो डेफिनेटली ओआई में ऐड भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो कटी है पोजीशन। तो अब मेरे को भी लग तो रहा है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ एक दिन गलत हो जाओ ना, 200 पॉइंट ऊपर जाता है निफ्टी, पब्लिक ट्रोल करने के लिए रेडी हो जाता है एकदम। अरे और सर, आपको भी क्लियर है क्या हुआ? पब्लिक को ट्रोल करते लग ये रहा है कि एक बार अभी ये 17,500 के आसपास आना चाहिए, जो शायद हो सकता है कि अगले 10 दिन में आ जाए। प्रशांत जी, पब्लिक से क्या मतलब है? आपको अपना अकाउंट बढ़ाना है कि पब्लिक को सुनाना है? नहीं, मैं तो देखो, हम लोग कहीं कुछ बोलते भी हैं, कुछ भी करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि देखो, आज मैं समझ की सर मैं भी बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, तो कहीं ऐसा लगता है कि कोई आदमी एक दिन गलत नहीं होना चाहिए। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा जब कोई आके उनको बोल देता है। अरे ठीक है यार, लोगों का काम है बोलने का यार, छोड़ो। I mean, थोड़ा रेस्पेक्ट करो यार, वो हर आदमी 100% करेक्ट हो नहीं सकता है। अरे मैं तो 87% टाइम रॉन्ग होता हूँ, उसमें क्या हो गया है? बट प्रशांत जी, प्रॉब्लम ये है कि उनकी स्पेस पे जब जाते हैं तब वही लोग हमको स्पीकर पे बुलाते हैं। ये सब जगह होता है। अरे मेरे को भी किसी ने, मैंने एक्चुअली क्या हुआ कि निफ्टी का नीचे का पुट लेके रखा था, मुझे भी किसी ने बोल दिया क्या आपने पुट लेके रखा, मार्केट में 200 पॉइंट ऊपर गया। किसी स्पेस में बोलते हैं कि लोग तो नीचे की बातें कर रहे थे। मुझे पता है, मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मेरा टारगेट बोल के लिया। सो ये थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, गलत तो हर कोई हो सकता है, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझ में नहीं आएगा, डायपर खरीदने तक के पैसे नहीं रहेंगे, इतनी बुरी हालत कर देंगे अगर नीचे आया मार्केट। तो चलिए, अभी इतना भयंकर डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है जो अडानी एंटरप्राइजेस में हुआ। सर प्लीज, बहुत हो गया। अडानी एंटरप्राइजेस जो ब्रेकआउट आया था ना, उस पर मैक्सिमम लोग फंसे हैं, और ऐसे आज ब्रेकआउट बहुत सारे स्टॉक्स में आया है। हो सकता है केनरा बैंक अगर अरे मैं क्या बोलता हूँ भाई, तू अपना देखना, दूसरे का क्यों देखते हो? छोड़ो ना, मरने दो। चलो, और यूएसएन उस्मान भाई, संजय भाई आप बोलो। संजय भाई, पचीले नीचे नूंगे। आशीष भाई, आशीष भाई, आशीष भाई। हाँ, समर्थ भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो शरद सर, परसों जो बात हुआ था, मैंने आपको थोड़ा सजेशन लिया था। तो एज ए न्यू ईयर रिजोल्यूशन, व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि आई विल स्टॉप trading into options now, and rather I would start doing SIP in some mutual funds. So my question is कि which funds would you suggest me, जहाँ पे like monthly 5,000 10,000 I can start doing SIP. तो कोई म्यूचुअल फंड आप कोई पर्टिकुलर फंड सजेस्ट करोगे जहाँ पे I can start doing that for a longer term. So basically I want to do it for my daughters. They are 5 years old now. I have twin daughters, and उनका further education and marriage वगैरह को वो दिमाग में रख के I want to do an investment effective Jan 2023. तो कोई अच्छा आशीष भाई, मैं आपको डीएम करता हूँ, आशीष। ठीक है सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स आशीष भाई? नहीं, दैट्स ऑल। एंड बस समझ सर,
आपका और नीलेश भाई का फैन हूँ, तो प्लीज अपना नॉलेज शेयर करते रहना। मतलब सबको अनफॉलो कर दिया मैंने, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग यू एंड नीलेश सर नाउ बिकॉज आई फाउंड दैट द काइंड ऑफ एडवाइस एंड knowledge you guys share without running any paid Telegram channels. So I find you guys very honest, and please continue doing the noble cause for us. Yeah, thank you. जिग्नेश भाई। हेलो, गुड इवनिंग शरद भाई, समर्थ भाई, ऋषिकेश जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. So my question is to Sharad bhai regarding sector of the capital good industries where I am holding some stock of Bharat Bijli, Voltem Transformer, Bosch, Lakshmi Machinery and Wendt India. So what is the outlook for this particular stocks going ahead? लॉन्ग रन है तो अच्छा है आपका। हाँ, लॉन्ग रन के लिए आई एम होल्डिंग फ्रॉम सिंस लास्ट 4 to 5 years. हाँ, बस तो पकड़े रखो, पकड़ के. हाँ, and one more thing, in one of the space you had mentioned regarding the hedging of the portfolio. So sir, what has happened the last week when on Friday the market fell down, so the portfolio was down by about more than 10 to 12%. So how do we hedge the portfolio? Like you said के आप कुछ अगर पुट अपन बाय करके रखते हैं तो पुट तो वर्थलेस हो जाता है एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द एक्सपायरी. तो अगर वो अपना जो पोर्टफोलियो जो हेज करना है, अगर उसका बीटा अगर 1.5 है तो कैसे हेज करें उसको? वो शेयर बेच दो। ओके, गुड़ देना तो शेयर बेचो और नीचे में ले लो वापस। अब सर ये सब तो काफी इनलिक्विड काउंटर है, जैसे आपको भी पता है ये सब. कितना है, लाखों है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, आपको नहीं. तो कितना है? लक्ष्मी मशीन वर्क्स कितना है आपका? 150 है लक्ष्मी मशीन. और तो उतना बिकता नहीं है क्या इलिक्विड? आप गलत बात मत करो यार, क्या इलिक्विड है? लक्ष्मी मशीन वर्क्स आप बोलो मेरे को 2 लाख बेचना है, बेच के देता हूँ मैं। ओके, कुछ इलिक्विड नहीं होता। ओके, थैंक यू. नीलेश भाई आपको रिक्वेस्ट भेजा है, आप आ जाओ भाई. MS 123. Hello. Yes. Adi. Namaste everybody. My question to Sharad bhai is, see, I'm short one lot of Cholamandalam Finance today morning. After that, it has spiked up, and I'm long one lot of Jubilant Foods today morning itself. So, is this position okay? Should I continue with it? यार अभी आज सुबह में लिया, अभी सवाल पूछता है, क्या आदमी है यार? Sir, I send you a message also. Yeah, but it's not worth answering ना. Okay. क्योंकि आज ही आप पोजीशन लिया, आज ही पूछते हैं, क्या ट्रेडर है तुम यार? Sir, I've been taking positions for the last 3-4 days, and I've been squaring it off. Because every day after I take a position, it spikes up. I'm talking about Cholamandalam Finance actually. तो छोड़ दो ना उसको, काट डालोगा. End of story. Okay. Yeah. Thank you, sir. भाई लोग, ये प्रॉब्लम होता है ये एडवाइस देने में. Every moment you have to explain to them, ये क्यों बढ़ा, ये क्यों घटा. अरे एक ट्रेड लो, 2-3 महीना रखो ना. चलिए. और मुजीब काजी. Hi sir, I mean hello everybody. So मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है करियर रिलेटेड, if I may ask. You know,
Yeah, what related? Career related, I mean to say. See, I have, I've been working in IT industry for the last 12 years now, and I earn around, 20 lakhs a year, and I started trading since last January, and I thought I'll start, my expectation through trading is like, key, if I earn around, at least whatever EMI I have, let's say, for example, 1 lakh, 50, 60K of whatever EMI I have, if I am able to earn that much also with a capital of 10 lakh at least, then it is fine for me. That expectation that started. And the reason why I started is like, my work timings are like, around 2 or 3 o'clock in the afternoon. So I thought I'll start it in the morning, so that I can utilize my time and just give some dedication here, and so that I can, earn some side income also. So the question is like, and secondly, when I started options trading also, I know it is too risky, but my goal is like, I'll start options selling some years down the line, but just to understand the market, just to get a feel of it, I thought I'll just start with the small capital. I started with the 50K, 1 lakh, but I haven't been able to make money. But for the learning purpose, I thought, okay, it's okay. But my advice, my question is like, Yeah, how Mujib, do I proceed with this question? Like, yeah. you are saying you want to replace this IT job with trading as a career. Some years down the line, if you say it's 6 to 7 years down the line, let's say, because job in the IT is kind of little bit of a risky thing as of now. I thought I'll just start something now, 6, 7 years or 10 years down the line. I should have something in hand so that I can earn something, right? Shouldn't be like, I don't have anything, any other income per se. You should have this spare funds deployed somewhere with an expert. You should never handle these funds yourself. That is my advice. Because trading as a career, you need to have an experience. Okay. An experience for an engineer, if you have passed out as an engineering person, you gave your 4 years and plus the whatever the starting you did the job. So nearly around 6 to 7 years you are here after 6 to 7 years of the whole career. So within that time frame, you have to learn this trading as a career for 6 to 7 years, and then you can do it full time. Right. It is the minimum time frame you should give. But as a career, it is very difficult to see because drawdowns are there, and unless you have 24 months of minimum capital, which you are seeing as a spare capital, जैसे 1 लाख का EMI है प्लस 50,000 1 lakh is the household income, तो 2 लाख आपको चाहिए या 50,000 और चाहिए मंथली बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो 2.5 लाख, तो 24 months into 2.5 लाख, इतना कैपिटल तो आपको स्पेयर में रखना पड़ेगा, प्लस देन यू कैन स्टार्ट ए ट्रेडिंग एज ए करियर. Before that, you should never. Right, sir. Makes sense. Mujib, sorry, I'm butting in here. Mujib, you are in IT. There is unlimited future here. I'm not sure why you feel a little, why you're feeling uncertain here. If you are in the tech side of it, the coding side of it, the potential and your earning potential and your potential to grow is unlimited. Maybe you should, revisit what you're doing in your job right now, right? And maybe take a branch from there and see if you can, explore alternate things. I don't know which company you work for, but the next 6 months or maybe a year is going to be tough in the outside space as well. It's a lot to do with liquidity, etc. But it's literally the future. I'm not sure why you're feeling uncertain, but I think you should speak to a career counselor and
pursue it. I mean, I sometimes think that I should have learned more of coding than I know. Right. Right. Yes, sir, I'm on the BA side of it. I am not a developer actually. Okay. So Mujib, it's not too Right. late. It's not too late. Yeah. Believe me, it's not too late. Okay. Yeah. Maybe you can look at product management, etc. Right. The age where you have to actually learn coding is also going to go away in the next 3 to 4 years, right? There'll be software that will write code for you. You'll just need to bring ideas. So I would recommend that you explore more options there. Trading is very risky. All of these people will tell you that, right? Right. I mean, just because my work timings allow me to kind of spend some time on the market, I'm focusing on the 100% of my career. I mean, my job. I can understand that. Learn Python. You may get something. You may get something more interesting in terms of jobs. You may get more interesting things to do. Yeah. I mean, I know. I'm saying this very casually, but I'm serious, right? I'll give you the example of my maid's 2 kids. I'm training them to code. The way they were thinking has changed for them completely, right? From looking at a job as a police constable, now this guy is dreaming of making 50,000-60,000 rupees a month because now he knows that it can be done, right? So just random advice. Yeah, thanks. All right. Thank you so much. Yeah. Shiv Pratap ji. नमस्कार शरद जी, नमस्कार समद भाई, नमस्कार सर. नीलेश जी नमस्कार. सर 2 मिनट लूंगा मैं. कुछ चीजें शायद मेरे तरफ से बहुत लोगों को ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा. भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास, लेकिन एक पैशन और शेयर मार्केट का जो कीड़ा है वो खून में बसा हुआ है. और इस स्पेस में मैं बहुत सारे स्पेस में गया हूँ. ऐसा नहीं है कि पिछले 6 महीने से एक प्रैक्टिकल जो पोजीशन या प्रैक्टिकल जो इंफॉर्मेशन मिलती है इसी स्पेस से मिलती है. शरद सर को मैं चरणों में अपना स्पर्श करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस से जो वो बोल रहे हैं और जो नहीं हो रहा है वो डिफरेंट मैटर है, लेकिन वो होगा. ये बात 99% लोग नहीं समझ रहे हैं और इस शेयर मार्केट में 5% से ज्यादा लोग कमा नहीं पाते हैं. मैंने वो ऐसा दौर देखा है जो कि चिदम्बरम जी के टाइम पे लुंगी पहन के वो जब आते थे तो 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर होता था. 1000 पॉइंट, सॉरी निफ्टी बोल रहा हूँ, सेंसेक्स होता था. तो हम सेंसेक्स को रीड करते थे. वही आदमी गड़बड़ करते थे, वही आदमी लुंगी पहन के एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी, हम ये कर देंगे. तब हम बाई का बटन दबा देते थे और शॉर्ट में रहते थे. तो आज का टाइम जो 5 महीने से चल रहा है ना सर, मैं सीजन प्लेयर हूँ. मैं कभी 24/7 मार्केट में नहीं रहता हूँ. पिछले 4 महीने में 5 महीने में मैं शॉर्ट कर रहा था, रुका भी, और मैंने बोला कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है जो वो हो नहीं रहा है, जो चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं. सर बुरा नहीं मानना, कुछ तो गड़बड़ है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं. और कुछ इकोनॉमी में है या कुछ ऐसी चीज है जो चीज हम पकड़ नहीं पा रहे हैं अभी राइट नाउ 5 महीने से. क्योंकि ऑलमोस्ट 15,183 जो बॉटम बनाया था, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड द बॉटम. लेट मी वेरी क्लियर विथ यू, विथ माय एक्सपीरियंस. लेकिन हमारी इकोनॉमी में ऐसा कुछ है नहीं. मैं रियल एस्टेट में हूँ, मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, दोनों कंपनी है मेरे पास. लेकिन सॉफ्टवेयर की भी हालत खराब है अभी. आई थिंक अनदर 3 मंथ्स में जितने भी सॉफ्टवेयर में हैं सबको अपनी अपनी औकात समझ में आ जाएगी. क्योंकि हाई सैलरीज हैं वो लोग, लेकिन उनका हाई सैलरीज होने के कारण उनका हाई EMI भी है.
World economy is not good. Indian economy is, I don't know. We are not getting into the reality right now. And share market is not visible. जैसे आज से 1 महीने पहले देखेंगे तो 3 बजे का जो कैंडल बनता था वो हायर पे बनता था. पिछले 3 दिन से कैंडल जो बन रहा है, हमारे शरद जी बोले कि ग्रीन कैंडल लेके बैठ जाओ या रेड कैंडल लेके बैठ जाओ. परसों के स्पेस में रेड कैंडल का लेके बैठ गए हम लोग. अब समथिंग इज रॉन्ग सर. अब पता नहीं शरद सर जी, इस पे गौर थोड़ा सोचिए सर. क्या ऐसा गड़बड़ है जो कि मार्केट गिर नहीं रहा है? और समझ सर जी, समझ भाई, सही बता रहा हूँ, आप जो मैसेज मारते हैं ना वो बहुत गलत है. जो लोग बोलना है बोल ले. देखिए, शेयर मार्केट में कोई भी गलत कभी भी हो सकता है. हमारे ऋषि जी बोलते हैं कि आप ये देखिए कि पैटर्न एक डेवलप हुआ है और पैटर्न को हमें वो करना है. मैं एक्चुअली ज्यादा पैटर्न और चार्ट में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ. मैं देखता हूँ अपना स्क्रीन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कहाँ पे ज्यादा कंसोलिडेट. मैं आज की डेट में ये बता दूंगा कि आप नेम ए शेयर. मैं 2006 में क्या वैल्यू था, 2008 में क्या वैल्यू था, 2009 में क्या वैल्यू था, मैं सब बता दूंगा, सब बता दूंगा. लेकिन मुझे चार्ट के रूप में कुछ नहीं पता. लेट मी वेरी क्लियर विथ यू. सेल होने दो, टाटा स्टील होने दो, नेम ए स्क्रिप्ट. कहाँ था, किसकी औकात कहाँ थी सर 2000 में? 950 से 1150 के बीच में आपका रिलायंस काम कर रहा था सर. 2014 में अदानी इंटरप्राइजेस 660 रुपीज पे मैंने लिया था, लेकिन आई कुड राइड ओनली अप टू 1100 रुपीज. उसके बाद मैं बोला कि इसका वैल्यूएशन नहीं है. सर कुछ तो इकोनॉमी में ऐसा पॉइंट हम पकड़ नहीं पा रहे हैं. मेरा विचार ये है, हम पकड़ नहीं पा रहे जो कि या डिस्ट्रीब्यूशन है. आज देखिए, आज का क्लासिकल एग्जांपल है, 3 बजे तक कोई कहानी नहीं हो रही थी. वो वहीं पे 40 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा था. उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन माने कि एल्गो ट्रेडिंग आ गया है. पता नहीं सर, आई एम नॉट अप टू द मार्क. आई बिलीव लास्ट थर्सडे मेरे हिसाब से निफ्टी टूटना चाहिए था कम से कम 400 पॉइंट और 18,000 के नीचे. नहीं रोक लिया. हम लोग बहुत मैं तो खुद डिमोरलाइज हुआ. मैं ऐसा क्या गलत हो गया यार कि हमारी एनालिसिस गलत हो गई. शरद सर आप बताइए सर, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आप हजारों करोड़ में होंगे. आप सही बता रहा हूँ कि इस टाइम पे हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं सर इस बात को. हम सोचते, कहाँ पे गलत, हम सोचते नहीं है. पता नहीं सर. शिकारी होता है ना जी सर, मौके का इंतजार करता है. वो नहीं सकता है शिकार क्यों नहीं आ रहा है, सिर्फ मौके का इंतजार है. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग सर. 6 मंथ से हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं. मैं तो नहीं कर रहा हूँ. अरे मैं 18 महीने से कर रहा हूँ, ठीक है ना यार, बट आई एम श्योर शिकार आएगा. ओके, हम शायद टाइमिंग नहीं कर पा रहे सर. टाइमिंग तो कोई नहीं कर पाया शिव प्रताप जी आज तक. नहीं, टाइमिंग देखो, चिदम्बरम के टाइम पे भी कर पाते थे. मैं पता नहीं क्यों फेल हो रहा हूँ, सही बता रहा हूँ. मैं आई एम फीलिंग माई सेल्फ वेरी डिसहार्टेड दैट व्हाई वी आर अनेबल टू रियली कैच द. प्रताप जी, उस टाइम पर एक आदमी था, अभी 4-5 आदमी काम कर रहे हैं. हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इतना ताकत नहीं हो सकती यार. शिव प्रसाद जी, आप मुझे डीएम कीजिएगा, अपने बात करेंगे. मैं आपको बिल्कुल सर. चलिए, मैं थैंक यू सर. मैं फिर डीएम करता हूँ सर. और कौन से भाई? ऋषि भाई आप बोलिए और उसके बाद नीलेश भाई. नहीं, नीलेश जी को बोलने दीजिए. मेरा आज कोई व्यू नहीं है. अच्छा, नीलेश भाई. हाँ, तो समर्थ भाई वेलकम बैक अगेन. शरद भाई वेलकम. तो अभी वही देख रहा था मैं, गुड बाय 2022 बहुत अच्छा टॉपिक है. एंड वी मेट लॉट ऑफ गुड पीपल एंड बैड पीपल. So we have to just forget about the bad people, start our new life in 2023.
वैसे ही स्टॉक मार्केट में है, जो बुरा शेयर है उसको छोड़ दो, पोर्टफोलियो में से भी है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो शॉर्ट करो, आप में रिस्क अच्छा है, इफ यू हैव दैट रिस्क टेकिंग एबिलिटी. इफ सम पीपल डोंट हैव, डोंट डू एनीथिंग, चुपचाप आप लोग एफडी करो, पैसा संभालो. See, saving money is also a big art, and whenever you are able to save money, you can deploy it back at a lower rate. That is also one kind of a short selling also. So meet good people, be in good company, share good thoughts. जैसे शर्वेंद्र सर ने हमें सिखाया था एन कैरी ट्रेड का, वो आज वही देख रहा था मैं. यूएसडी जेपीवाई नीचे है, प्रॉब्ली निकाई भी नीचे होगा. आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ निकाई कैन गो डाउन मोर फ्रॉम हियर, and we can see bad Asia on Monday itself. So anything can happen anytime. वो शिव प्रताप जी बोल रहे थे, तो समय हमको क्या है सर, कोविड के टाइम से समय पूरा बदल गया है. एंड एक मिनट लॉट ऑफ नीरज भाई, हाँ बोलो सर. समय अपना नहीं होता है, अपने बराबर है सर, समय के होते हैं. बराबर है सर. मौके का इंतजार करिए. राइट. वल्चर इज अ पेशेंट बर्ड. हाँ बोलिए. हाँ तो 90% क्या है, पीपल आर प्लेइंग ऑप्शन which was not earlier at the Chidambaram time or the earlier era, 8 years down the line. तभी 90% people were playing futures or 80% futures. So that has changed. So something will happen where all these option writers, those who are doing option writing, is pretty dangerous job. वो आप मेहरबानी करके, आप में कोई स्किल नहीं है. somebody else was also speaking, आईटी का जॉब छोड़ के ऑप्शन राइटिंग करना है या ये करना है, ऐसा मत करो. व्हेन यू हैव फिक्स सैलरी, फिक्स इनकम, व्हाई यू अरे क्रिएटिंग. भाई साहब, निखिल भाई, अरे नीलेश भाई, हाँ इधर एक चमरबंदी बता दो जो ऑप्शन में माहिर हो. मेरे नहीं, लेकिन सर अभी एक बंदा आया था कल. सुनो, मैं इतना माहिर होने के बाद भी टच नहीं करता हूँ, बराबर है मुझे मालूम है एक न एक दिन मेरी अर्थी उड़ जाएगी. बराबर है सर, बराबर है. तो humble suggestion, don't do option writing. Please don't do. Those who are doing, let them do. वो उनका कोई स्किल होगा, वो मल्टी टैलेंटेड होगे. वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीबॉडी, बट डेवलप योर ओन स्किल. हर आदमी में एक अच्छा स्किल होता है. इफ वी आर मेड बाय गॉड एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे सब में पास एक अच्छा स्किल है. आप अपना एक अच्छा स्किल ढूंढो और अच्छे काम के लिए यूज करो. दिस वुड बी माय रेजोल्यूशन फॉर 2023. थैंक यू. और एक बात बोलता हूँ, जैसे आप सीखते हो क्या लेने का, यस, उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको आना चाहिए क्या बेचने का. यस, परफेक्ट सर. या अपने पास क्या है वो अच्छा है या बुरा है, उतना समझ नहीं होगा तो आप शेयर बाजार में सक्सेस नहीं हो पाओगे. हमें मालूम है क्या लेना है, हमें मालूम है क्या बेचना है. तो ये दोनों पहलू अगर आप नहीं समझोगे, सिर्फ लेना है, यस आप पोर्टफोलियो बनाओगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूँ, बाद में जाके सब गड़बड़ी होना है. सो एटलीस्ट यू लर्न. आई एम नॉट सेइंग यू शॉर्ट, लेकिन आप सीखो ना क्या खराब है. ये जो भाई आया था, ये आईएक्स का पूछता है, अरे उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, फॉर्म भरा है, 600 रुपया भर के कंपनी बनाया, उसमें वो तेजी ढूंढता है. कम ऑन यार. तो चलिए. शरद सर, एक चीज बोलना चाह रहा था कि जो शेयर मार्केट में अगर बेचना नहीं सीखा, वो शेयर मार्केट में बाई कभी नहीं कर सकता सर. ठीक है, सही बात है. चलिए, अभी कौन है दूसरा? सुहेल भाई बोलिए. Listen, hope you guys are well.
look, I'm in London. I've been in the stock market for a very, very long time. Okay, the thing is, there's two. Everyone needs to understand that there are some principles that you learn yourself over time. Few things that I've learned, right, is that patience, cash is still king. Okay, no matter what you say, cash is still king because you have then the flexibility of what you want to do. You either buy or you sell, you go, etc., etc. But look, you got to be patient, right? Because everyone understands that the market isn't stable at the moment. Like, you don't have to be an expert to understand that. The other thing is that a lot of people think that, you know, they looking at patterns, looking at what other people are doing. Everyone buys at a different time. Everyone sells at a different time. Everyone's portfolio is a different thing. You know, if it's not duplicate, you can't basically copy someone else. So although, you know, you might have people with a lot of experience that will tell you, look, this is what I believe, or this is what I think, or this is what my portfolio is. Even the most experienced people take a hit, right? But the most experienced people would then, you know, not, they'll be experienced enough to not tell you that I've taken a hit. So, and the most amateur people will probably say, you know what, things are very, very bad for me at the moment, and everything is looking all dark and gloom, and it doesn't look good. So I think, you know, people should just be patient. It doesn't matter where you are, and which, you know, you could start your journey now. You have started your journey many years ago. Just be patient and see what happens. The one thing I would say is that a lot of people spend a lot of time looking at charts. Okay, or someone was mentioning the green candles, red candles, etc. Listen, your instincts are still the most important things. Like, if you think that there is a pattern developing, or you think that there is something happening there that you can either go short, or you need to sell, you need to buy, just, you know, do it. But always eliminate risk. You know, you need to always remember that risk is something that you should always try and eliminate. That's all I wanted to say, because I thought, you know, in 2022 I've seen a lot of people in spaces, you know, get very disheartened about the whole stock market and things like that. But, you know, I thought I'd just end 2022 with just a bit of like my advice on the way how the market is. But in 2023, try and be a bit patient and see what happens. But yeah, that's all I wanted to really say. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Suhail. Yeah, Abhishek. हेलो हाँ बोलिए। शरद भाई, आपका कोई जिंदल 100 पे कुछ व्यू रहेगा क्या? नहीं भैया, नहीं नहीं है कोई व्यू? नहीं। Yeah, Anirban. Yeah, hello everybody. So actually my view on option is a bit different from Mr. Sharad and Mr. Nilesh. So I was a bit skeptical whether I should share it or not. But if No, you don't allow share me, it. Don't share it. okay, no problem. Because it will be all cock and bull. कितना एक्सपीरियंस है आपके पास? Yeah, golden reset. गोल्डन रिसेट। दीपक जी आप बोलिए, दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। HSS. Thank you, sir, for giving me a chance. I am here from last 2-3 times. शरद सर, आपको और यहाँ के एक्सपीरियंस लोगों को सिर्फ एक ही थोड़ा सवाल था मुझे कि हमारे इंडिया में सोने का भाव 55,000 है, कंटिन्यू वी आर मेकिंग न्यू हाइज। डज डॉलर डिनोमिनेशन भी सोना बढ़ रहा है, न्यू हाई मार रहा है, या सिर्फ हम ही मार रहे हैं? और हम अगर मार रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। मतलब ऐसा मुझे लगता है। आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आई एम इन स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट सिंस 2004, और इकोनॉमी अच्छी है यही बताया जा रहा है।
करेक्ट मी, मतलब मैं सही कह रहा हूँ? मेरे सवाल मतलब सोना डॉलर डिनोमिनेशन में टॉप नहीं मार रहा है शायद 4-5 साल से। इवन कोरोना में भी सोने ने नहीं मारा था, हमने मार दिया। लेकिन भाई साहब, हाँ डॉलर रुपी रेट ये साल 11% डेप्रिसिएट हुआ। हाँ, उसके वजह से मारा ना, उसके वजह से सोने का हाँ, भाव। हाँ, लेकिन बस डॉलर डिनोमिनेटेड में सोने का भाव आउंस में तो नहीं बढ़ा है ना, मतलब डॉलर नहीं, अभी 1820 है। हाँ, और शायद टॉप 1902 है हमारा। हमारा रुपया गिर रहा है इसलिए सोना भी बढ़ रहा है, राइट? हाँ, बस हाँ, इट्स बस नॉट। और 15% इम्पोर्ट ड्यूटी है। 15% इम्पोर्ट ड्यूटी है कि 4%? हाँ, 15% है। ओके ओके, फिर 7,500 तो उधर ही निकल जाएंगे, 47,800। ओके ओके ओके, ठीक है सर, ओके। लेट्स ट्रेड। अरविंदर जी। हाय सर, मेरा 3 स्टॉक पे क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। एक तो ये टाटा मोटर्स डीवीआर, एक पतंजलि और एक हिंद कॉपर। ये ले सकते हैं क्या 4-5 साल होल्ड करके रखने के लिए? टाटा मोटर डीवीआर, हिंद कॉपर और पतंजलि। भाई एक काम कर, हाँ जी। एक के लिए रुक जा। हाँ जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थोड़ा। हेलो। एक महीने के लिए रुक जाओ। ओके सर, ओके, ठीक है। ठीक है, 1 महीने के बाद तो ले सकते हैं। अरे पूछना वापस। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, मैं दोबारा स्पेस में आके पूछेगा। ठीक है, थैंक यू। दीपक जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो सर। सर मेरा ये पूछना था कि जैसे यूएस मार्केट में वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है 2022 में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, तो इंडिया में जैसे अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन में करेक्शन होगा, क्योंकि फंडामेंटल में हमेशा इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे वैल्यूएशन करेक्शन आता है। तो सर यहाँ पे आपको लग रहा है 2023 में ऐसा हो सकता है? आएगा आएगा, पक्का आएगा। ठीक है बहुत सर, बड़ा करेक्शन आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। या शिवदास कन्नड़े। शिवदास जी बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। थैंक यू सर, शरद सर और समर सर। तो मैं आपका स्पेस सुनता हूँ लास्ट 2-3 महीने से, और मैं आईटी में हूँ। और मुझे अभी थोड़ी देर पहले ये मैसेज था आईटी का छोड़ने का, तो मैं उनका सजेशन है कि आईटी में बहुत सारा ग्रोथ है। और मेरा भी ने बोला था कि उन्हें 12+ एक्सपीरियंस है, मुझे भी उतना है। और मैं ऐसा ही ट्विटर से मैंने पहले शेयर लेता था बड़े बड़े वैल्यू से, लेकिन आपका स्पेस सुनने के बाद अभी मैंने सब बेच दिया है। और आपको शरद सर और आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैंने यस, तो आईटी में मुझे अभी मेरा उतना एक्सपीरियंस है अभी। मैं उसने अभी मैं नया स्किल सीखा हूँ, उसीलिए मेरा ज़्यादा पैकेज बढ़ा है। और मैंने दूसरा साइड बिजनेस के लिए मैंने ब्लॉगिंग और यूट्यूब किया, और मैंने देखा है कि उसमें ज़्यादा ग्रोथ है इसका ट्रेडिंग से। तो जैसा कि आप जो कम वाले शेयर है वही लेना है, और उसी से करना, ज़्यादा वैल्यूएबल लेना। थैंक यू। क्या कम वाले से लेना है माने शिवदास जी? कम, जैसे कि आप सजेशन किए थे सर ने कि साउथ जो साउथ इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, और जो 100 के नीचे जैसे कि कोल इंडिया नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अब आप उनके टाइमलाइन पे जाइए ना, तो आपको और भी स्टॉक मिलेंगे जो मल्टीनेशनल कंपनी के होंगे,
आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो फ्लेवर है अभी, इसलिए चल रहे हैं। ओके ओके। तो फिर बाद में अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार निकल जाना। हाँ, और शरद सर ने भी उन्होंने रिकमेंड किए थे कि जो एमएनसी शेयर है, जैसे कि फॉर हाँ एग्जांपल बस 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 सीमेंस है, एटीबी है, और बाकी और उन्होंने बताए थे, तो आर मैंने एच आई उसके है, रिम है। हाँ हाँ, तो उससे मैं आपसे स्पेस सुन सुन के अभी बाकी सब मेरा पोर्टफोलियो जो सब खाली कर दिया, जिसकी एमएनसी और मैंने देखा है कि उसमें ज्यादा ग्रोथ है। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। या पंकज जी बोलिए। Hello, sir. Am I audible? यस यस। Okay. So I'm trying to give my point of view on this market. Okay. So in trading and investment journey, your role should be a fund manager of your fund. If you are able to generate 15 to 20% return on a CAGR basis, then this is a very reasonable expectation from this market. And there's so many trading styles, so many index, so many ways available for generate this return. And when you expect reasonable return from this market, you can easily generate market give you a lot. Okay, so on the same basis, I share my experience. I only focus 15 to 20 CAGR return, 15 to 20%. But in 2021, I generate approx 88 to 90% return. But it will not happen every time. Okay, so your your expectations should be reasonable, and your role should be a fund manager of your fund, not trader, not investor. Your entire capital, actually three major pillars. First is price psychology. You need to know each and everything about market. Okay, there's a success doesn't have any shortcut, and you need to know each and everything about market. What is market, how price react, what is a stock, what is index. First invest on yourself, and second one is money management. Just diversify your portfolio. Okay, and third one is risk reward. What will you get if you are right? What will you lose if you are wrong? So okay, so that's all from my side. I give only my experience of whatever I learn from market. Thank you, Okay, thank you Pankaj How ji, many thank you. years of experience you have? approx 7 years. Good. And I want to also share you that in starting phase, actually I don't have any godfather on this market. Okay, I started from the scratch, and from 2016 to 2018, my dedication is much high on this market. And whatever I am. Yeah, Isu Mivi. गुड इवनिंग जेंटलमैन। आप लोगों का ये स्पेस, मतलब आई एम एन नोवाइस लर्नर, आई शुड से मार्केट में। आई जस्ट मॉनिटर व्हाट इज गोइंग एग्जैक्टली। सो दिस स्पेस हैज बीन मोर देन ऑफ लर्निंग। एंड यस, आप लोगों की एक टीम है जो बोलिए आपस ना में सर, काम का बात बोलिए ना, ना सर, इट्स I just actually come here to listen and gain things from you, sir, you superiors. Thank you, sir. That would be it. Respect your whole time. Thank you. Yeah, Vikrant ji. Hi, Samarth and Samar sir and everybody. Just a quick question. So I've been doing just mutual funds. I'm not a trader.
I have invested very little capital, probably 10 lakh rupees in last 10-15 years, and I'm still learning. My question is, I mean, for a retail investor, does it make more sense to just stick with mutual funds, or can we, like, for example, let's say that I have 50 lakh rupees, can I go ahead and deploy 50 lakhs in 50 companies, and forget about it, literally, now for 10 to 15 years? Is that something that a person should be thinking of doing it, or should we just stick to mutual funds? You stick to mutual funds, and if you want to play direct equity, so invest 50 lakhs in 10 scripts. In 10 scripts. But the problem, Sarat sir, is that it's very difficult to, I mean, for somebody like me, I mean, I don't have time to go ahead and read the annual report. And I understand that you guys are like experts in all of those things. You can trade and you can do all of those things. I don't have the capability to go through it. So, like, I'm really fascinated by the coffee can investing concept, but I don't have the skill set. Although I have selected certain stocks and I would like to do that, but I just want to buy and forget. Is that something that you guys would recommend? Or what is the thoughts around it? And I would love to get your views on it. Yeah. Suppose if you fall sick, what will you do? Take the medication, go to the doctor. Okay, you will go to the doctor. And over here, you are not going to a doctor. You want to do it yourself. So you will screw it up. That's the basic answer. So is the PMS a better option then? I'm not a great fan. No, I'm not capable enough to answer because I do my own thing. I am a doctor. Right, sir. You are a doctor. You are not capable. I don't know who else is capable. I mean, you have been doing it for decades and decades. So yeah. So in my case, I wouldn't know what would suit you, what will not suit you. So I don't want to take a lot of time because I know there must be a lot of people who are wanting to ask you questions. The point is, let's say that somebody has enough patience and is not afraid about the market's ups and downs. Like literally I bought my first share like 10 years back. You will lose all your money. But I never sold anything, sir. Yeah, but you will lose all the money. If you are not afraid of anything, you will lose money. One should be afraid of things. So you say stick around with the mutual funds and don't put that 50 lakh because that's obviously very extremely hard done and it's a lot of money for somebody like us, general public. So stick to mutual fund, and if you have that fund, put it in a mutual fund or index fund. It's nonsensical. Vikranji. Why don't you DM me? I will guide you. Actually. Okay, sir. I'll do that. Yeah, somebody took my name. Yeah. Yeah, Vikranji. Samad sir, tell me. Tell me, Samad sir. Yeah, invest in PMS if you have a horizon of 5+ years, not less sir, than I have that. a horizon of 20 years, sir. I'm extremely patient. ठीक है. Okay, thanks, Samad sir. Thank you, Sarat sir, and all the speakers. Appreciate it. चलो भाई कोई. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ नमस्ते सर. मैं काफी दिन से आपका स्पेस सुन रहा था. बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके. सर हिंडाल्को के बारे में कुछ जानना था कि हिंडाल्को शॉर्ट करके रखा हूँ तो होल्ड करूँ उसको या जैसे अब कुछ ज्यादा ही लॉस हो गया तो या कवर कर लूँ उसको अभी. क्या भाव में बेचा था? अभी सर 470 के आसपास चल रहा है. अरे मैं पूछा क्या भाव बेचा था? 55 में बेचा हुआ है सर. 455 में. तो 15 रुपया ही है. हाँ 15-16 रुपया. आज जैसे 80 का हाई मार के आया है तो 15-16 रुपया बढ़ा हुआ है. अरे यार आप सौदा करते हो क्यों? अगर पेशेंस नहीं है तो. नहीं पेशेंस है सर. पेशेंस है. तो बैठे रहो ना. 200 रुपया हो जाएगा. छोड़ो. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू.
चलो भाई, बोलिए कौन है? Hi, Sharad sir. Hi. Sir, I just wanted to ask you if you still track Arabica coffee futures in US, and if you do, what is your view on it? Downwards. Downwards. Okay. Yes. Thank you, sir. Yep. Sir, good evening, sir. Manjunath. This is Manjunath. सर मेरे को है ना डिफेंस सेक्टर का स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था, लाइक BDL एंड HAL. मैं थोड़ा SIP की जैसा ये कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए. जैसे ये दोनों शेयर्स के लिए थोड़ा व्यू चाहिए था. अच्छा है, अच्छा है, ले. थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 साल के लिए. हाँ हाँ, बहुत अच्छा है. भारत डायनामिक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. यस. और 30% घट जाए तो बेच देना. यस सर, यस सर. यस. थैंक यू सर. चलिए. समझ નથી કે समर्थ समर्थ बोलिए नितिन भाई. AB स्पीकर पीयूष भाई. हेलो सर, मैं हाँ बोलिए. बोल रहा हूँ. पिछले लगे कि अरे पीयूष भाई, आपका आवाज कट के आ रहा है. पीयूष भाई का आवाज कट के आ रहा है. शरद जी. शरद भाई, कैन यू हियर अस? यस. हाँ बोलिए. शरद जी, मेरा और सर्वेंद्र सर, आप दोनों से एक सवाल है कि मेरे दो सवाल है. एक तो ये अपना ये WTI और ये UK ऑयल दोनों में डिफरेंस श्रिंक हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है मेरी. इसका तात्पर्य क्या है? और दूसरा ये जानना है कि दूसरा क्वेश्चन है कि हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति हो सकती है अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में. ये दो क्वेश्चंस का आंसर आप अपनी समझ से दें. ये WTI और लंदन ऑयल का डिफरेंस ज्यादा कम होते रहता है बेस्ड ऑन द डिमांड. वो कभी कभी इक्वल भी हो जाता है और कभी कभी $60 $8 भी होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड. लंदन ऑयल का डिमांड इज बेस्ड ऑन दिस मोस्टली एशियन कंट्रीज and WTI NYMEX is US. So that's the reason. And about hyperinflation, it's a slow process in a rising interest rate. When the central banks cannot control the interest rate, when they cannot control inflation, then there is a runaway inflation. Then there is further inflation. So that is known as hyperinflation. Okay? Hello.
हाँ जी सर, मैं आप यही पूछना है कि क्या राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति पॉसिबल है? सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि कई सारे लोग हैं, कई सारी स्टडीज हैं जो बताते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन में मेटल्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो और क्या नाम है, ये सारी चीजें, तो मेरे को ये जानना है आपसे, क्या हाइपर इन्फ्लेशन राइज, क्योंकि इंटर मान लो कांस्टेंट कर देते हैं अभी राइजिंग इंटरेस्ट रेट जो अभी पड़े हैं और बढ़ाते नहीं, 2 साल कांस्टेंट रखते हैं, क्या तभी भी संभावना है कि हो जाए हाइपर इन्फ्लेशन? कुछ भी हो सकता है। लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स आर वेरी डायनामिक। प्लीज। ओके सर। What are we talking about here? हेलो। Hi, sir. I have a question. Can I go ahead? या सर, एनटीपीसी के बारे में आपका व्यू चाहिए था, क्योंकि एक तो काफी अफोर्डेबल लगता है, दूसरा है कि एक्सपैंडिंग इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन एनर्जी वगैरह सब कुछ। तो आपका कोई व्यू है उसके ऊपर? अब पड़ा है ये भाव 120, 160, 70 चलता रहेगा पूरा जिंदगी से। So it's a good long term kind of a play into India's energy. I didn't. So for me, a good long term is कि 120 का 2000 रुपया हो गया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि 120 का 160 हो। ओके ओके, थैंक यू। No, because investing in equities is very risky, and after taking so much of risk, if you want to earn just so much, it's not the risk. ओके सर, थैंक यू। चलिए भाई, कौन है? और बोलिए ना भाई, कोई सतीश भाई आप गुड बोलिए। इवनिंग। अरे प्रहलाद बोल रहा हूँ सर। हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। थोड़ा लेट ज्वाइन किया आज अभी जस्ट, एंड अभी सुना थोड़ा इन्फ्लेशन इसके बारे में। आई डोंट नो आज टॉपिक क्या है इसमें। तो गुड बाय 2022 लिखा है, बट सिंस मौका मिला है प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए, तो जैसे डे बिफोर यस्टरडे अपने एक स्पेस पे मैं कह रहा था अबाउट मार्केट जहाँ पे डाइसी सिचुएशन है, मार्केट गिर सकता है। आज का जो मार्केट था उससे तो क्लियर हो गया है कि मार्केट थोड़ा करेक्ट होना चाहिए। लास्ट टाइम मार्केट ने जब फॉल लिया था हाई से, तो 0.5 रिट्रेस किया था फ्रॉम द रिसेंट स्विंग, एंड अभी जो 4 दिन का जो ये रनअप था इमीडिएटली आया था, तो डेफिनेटली इट वाज अ बुल ट्रैप। तो अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो आई वुड रिकमेंड बी लाइट एंड ऑलवेज हेज योर पोजीशन। आज का जो फॉल था विच इज क्लियरली एविडेंट कि मार्केट इज रेडी फॉर सम करेक्शन। मे बी आईटी थोड़ा सा बाउंस बैक करे या थोड़ा रुके, बट ओवरऑल मार्केट में जो सिचुएशन है अभी इट्स नॉट समथिंग के ऊपर जाए। तो एक ये चीज है। टेक्निकल्स की मैं बात करूं तो इफ यू सी मार्केट को अगर ऊपर जाना। हाँ brother, सर। we have been through all of this in these 2 hours. अच्छा सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसके लिए, Yeah, बट या point well taken. थैंक यू सर। चलिए दूसरा भाई कोई बोलो। हेलो शरद सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, आपका बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या थॉट्स हैं? सॉरी, आप गलत आदमी से पूछ रहे हो। और कुछ पूछना है भाई? ये भी। हेलो।
Sarvendra, you can hear me. Sarvendra, you can Yeah, hear Sharad me. bhai, yeah, Sharad, I can hear you. I can hear you. Yeah. कोई बोलो भाई. हाँ, so someone was asking my view. मैं थोड़ा offline गया था. I think someone was asking my view. तो broadly अभी तो पूरा भाव कॉपी बैठ के देखूंगा पूरा डिटेल में, क्योंकि आज तो ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली सारा क्लोज आया है. बट व्हाट आई ब्रीफली सॉ, व्हिच आई आल्सो अपडेटेड अर्लियर, जो मैंने आपको बोल रहा था कि भाई आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स ऑन द ईयरली कैंडल्स, around 30 odd stocks are showing me slight bearishness in the formation, or they have a, so which means 2-3 observations: either they have a bearish candle formation or they have had a yearly negative close. So I can see around 30 odd stocks which are showing negative candle formations for the year, and remaining 20% तो ठीक है, वो जो नीचे से something like an IT and some and some pharma is probably turning. तो ये तो एक बहुत क्लियर चीज है कि 61% यूनिवर्स जो है वो अब इट स्टार्टेड टू काइंड ऑफ शो बेरिशनेस इन द वीकली ऑन द ईयरली चार्ट्स. सो उनके लिए 2023 कैन बी म्यूटेड फॉर 60% ऑफ द मार्केट. जस्ट प्लेन वनीला बोल रहा हूँ, और डिटेल्स में तो मैं भी जाऊंगा, पूरा वीकेंड है सब देखने के लिए. एंड सेम गोज फॉर मंथली क्वार्टरली सेटअप्स आल्सो. अराउंड 50-60% ऑफ द यूनिवर्स इज शोइंग बेरिशनेस ऑन दोज सेटअप्स आल्सो. तो वो एक चीज रहेगी. और एक BSE 500 में आई एम सीइंग अ रिपीट ऑफ द 2010 टॉप. 5 नवंबर 2010 में हमने एक टॉप बनाया था, जिसका मेरा एक वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है. इफ पीपल कैन गो एंड फाइंड दैट, दे कैन. तो एग्जैक्टली उसी तरह के सिनेरियोज अभी बन रहे हैं इन द BSE 500. आई कैन सी अ लॉट ऑफ बेरिश डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स. एंड अगेन आई एम जस्ट गोइंग बाय परसेंटेज कि एक BSE 500 में 50-60% स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे बेरिश टॉपिंग आउट फॉर्मेशंस बन रहे हैं. तो जिनके इम्प्लीकेशंस अगला 10-12 महीने 15 महीने मिनिमम चलने चाहिए. बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि जस्ट लाइक 2010 टॉप, द फाइनल लो ऑन द मिड कैप्स, एंड बाजार का तो बॉटम बन गया था 18-20 महीने में. बट मिड कैप इंडेक्स केप्ट ऑन फॉलिंग टिल ऑल द वे टिल 2012 एंड 2013. तो आई थिंक वो एक उस तरह का एक सेटअप बना हुआ है. लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज देयर. वो साल भी यही हुआ था कि सितंबर अक्टूबर में ब्रेकआउट हुआ था. सितंबर के आसपास ब्रेकआउट हुआ था. इस बार अक्टूबर में ब्रेकआउट हुआ. तो वो 1-1.5-2 महीने का ब्रेकआउट होता है, लोग ट्रैप हुए और उसके बाद खत्म. और करंट जो 18,600 का ब्रेकआउट हुआ, दैट आल्सो लुक्स लाइक अ बुल ट्रैप, वो भी खत्म. वॉल्यूम्स अब यहाँ पे ड्राई होना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, विच मीन्स कि अब जो नेक्स्ट लेग का जब मोमेंटम पकड़ेगा तब यू विल सी सम वॉल्यूम एक्टिविटी. बाजार में पार्टिसिपेशन नहीं है, मे बी बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर ऑल्सो. बट नेक्स्ट ईयर फर्स्ट वीक शुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल. और अब ये जो 18,400 18,500 का लेवल है, दिस आइडियली वुड एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ. 18,500 18,550 के बहुत ज्यादा ऊपर आइडियली जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए. टिल देन दिस हाइपोथेसिस, दिस रीडिंग विल होल्ड. जी शरद भाई. Yeah. Yeah. KHU, please speak. हाँ सर, नमस्ते. मेरे पास है ना अपोलो हॉस्पिटल, मैंने बाय किया है कल 2 लॉट. तो 2 दिन से तो नीचे ही जा रहा है. मेरी सजेशन होल्ड करना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल. सर यार ऐसा तो क्या हम एडवाइस देगा. अच्छा, मैंने 4575 में लिया है, वहाँ से 1% डाउन आया. तो यार तुम 1% के लिए धंधा करते हो यार. ना मतलब होल्ड कर रहा हूँ. सो इज इट एडवाइसेबल? आई मीन डू यू थिंक शुड आई होल्ड? एक मिनट. आपने जब लिया पूछा था हमको ना, तो मैं कैसे बोलूँ आपको. आपने जिसको पूछ के लिया या अपने आप लिया, तो आप ही डिसीजन ले लो ना सर. ओके. ओवरऑल आपको सेक्टर कैसा लग रहा है? हेल्थ केयर सेक्टर बकवास 1/4 हो जाएगा. ओके, थैंक यू. या थैंक यू. मैं एक सर्वेंद्र सर आपसे एक बात पूछना चाहूंगा. जैसा ही अपना 2018 में मिड कैप का टॉप लगा था और फिर उसके बाद 2019 में निफ्टी ने जरूर नया हाई लगाया था, लेकिन मिड कैप तो गिरते ही रह गए थे. मिड कैप में स्पेशली ऑटो. गुड तो इवनिंग आपको शरद वैसा सर, फॉर्मेशन नजर आ रहा कैन है? यू हियर मी?
Somebody is talking after he finishes. Sir, can you hear me? सर्वेंद्र सर हाँ मनीष जी इनको बोल लेंगे. सो हाँ जी आप क्या पूछ रहे हो? जस्ट प्लीज रिफ्रेश योर क्वेश्चन. मिड कैप के बारे में पूछ रहे हो आप? नहीं मैं आपसे बोल रहा हूँ जो आप कह रहे हो कि 2000 वो 10 वाला टॉप लग रहा है, उस हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि निफ्टी ने नया हाई जैसा अभी तोड़ा वैसा 2018 में निफ्टी ने हाई मारा था और फिर नीचे गिरना दोनों मिड कैप और निफ्टी चालू हुए, लेकिन 2019 में निफ्टी ने नया हाई लगाया लेकिन मिड कैप फिर भी गिरते रह गए, तो वो मेरे को सिमिलैरिटी लग रहा है, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें. हाँ देखिए हर बड़े टॉप में सी गोइंग बैक टू द सिंपलेस्ट ऑफ द थ्योरीज व्हिच वाज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स डाउ, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है, उनके जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि व्हाट टू लुक इन अ ट्रेंड एनालिसिस व्हेन यू आर डूइंग व्हाट ऑल यू शुड लुक एट. सो ही हैज इनोमरेटेड ओनली 6 पॉइंट्स. ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया उस बंदे ने. दैट इज व्हाई हैट्स ऑफ टू हिम कि वो आज से 150 साल पहले भी 100 साल पहले वो बंदा एकदम सिंपल 6 पॉइंट लिख के चला गया. वही 6 पॉइंट आप लाइफ में फॉलो कर लो तो भी काम हो जाएगा. आपको नहीं करना है कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस कुछ भी. तो उस 6 पॉइंट्स में से उसने एक पॉइंट यही बोला था कि एवरेजेस मस्ट कंफर्म. सो किसी भी बड़े बाजार में, किसी भी बड़े मार्केट कैप बाजार में हर तरह के इंडाइसेस होते हैं. सो यूएस के लिए उन्होंने जिसके लिए कमेंट किया था उन्होंने बोला इंडस्ट्रियल्स एंड ट्रांसपोर्ट्स. उनका कहने का मतलब था कि भाई अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है तो द ट्रांसपोर्ट इंडेक्स शुड कंफर्म. मतलब अगर मैंने माल बनाया तो बिकना, ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए ना. माल खाली बन के फैक्ट्री में रह रहा है और ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है तो वो दोनों इंडेक्स का कंपैरिजन करते थे कि तो हर बड़े टॉप में आप देखेंगे कि या तो डाउ नया हाई बना चुका होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं बनाएगा, या ट्रांसपोर्ट नया हाई बना लेगा, डाउ नहीं बनाएगा. सो जब इस तरह का विरोधाभास होता है विच इज कॉल्ड नॉन कन्फर्मेशन बाय द इंडाइसेस, विच मींस द इंडाइसेस आर नॉट इन सिंक विद ईच अदर. जो आप अभी क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई निफ्टी ने नया हाई बनाया और मिड कैप इंडेक्स ने नहीं बनाया, या बीएसई मेटल ने अभी तक नहीं बनाया, या आई थिंक बाकी सेक्टोरल इंडेक्सेस काफी सारे जिन्होंने नहीं बनाया. आईटी ने नहीं बनाया अभी नया हाई, आईटी तो गिर ही रहा है लास्ट 9-12 महीने से. सो दिस इज कॉल्ड नॉन कन्फर्मेशन ऑफ अदर इंडाइसेस विद द मेन इंडेक्स. सो डाउ थ्योरी में कंपैरिजन किसका था? डाउ इंडस्ट्रियल्स का, डाउ इंडस्ट्रियल्स का डाउ ट्रांसपोर्ट के साथ. अब उसके बाद नैस्डैक आ गया तो लोग नैस्डैक से भी उस चीज को भी मिलाने लगे हैं कि भाई नैस्डैक भी कंफर्म कर रहा है कि नहीं. सो इन इंडिया यस यू सेड देयर आर वेरी हैंडफुल ऑफ गुड sectoral indices and good indices which have been maintained by our exchanges, so we should be happy. अच्छे indices हैं खाली आपके कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए. तो यस जब लार्ज कैप इंडेक्स के साथ मिड कैप इंडेक्स नहीं चल रहा है, विच मीन निफ्टी के साथ निफ्टी मिड कैप नया हाई नहीं बना पा रहा है, वो अलर्ट होने का टाइम है. बैंक निफ्टी और निफ्टी अलग अलग जा रहे हैं, वो अलर्ट होने का टाइम है. या जो लीडिंग सेक्टर होता है बुल मार्केट का, तो बुल मार्केट का लीडिंग सेक्टर जो होता है वो अगर इंडेक्स के साथ जाना मना कर दे तो एक अपने आप में वो एक दैट इज डेफिनेटली वन वे टू बी वेरी अलर्ट. तो मैं सबको वही बोलता हूँ, जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी रेशियोज ट्रैक कर सकते हैं करें. उनको दिखेगा कि 2018 का हाई के बाहर ही नहीं गया अभी तक. निफ्टी बैंक निफ्टी रेशियो ने नया हाई बनाया ही नहीं है 2018 के बाद से. सो विच इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ अ लॉन्ग टर्म वीकनिंग. सो यू हैव टू हैव पेशेंस व्हेन यू हैव लुक्ड एट अ लॉन्ग टर्म इंडिकेटर. तो जो शरद भाई बोल रहे थे एग्जैक्टली, व्हेन यू लुक एट अ लॉन्ग टर्म इंडिकेटर एंड यू आर टेकिंग अ व्यू फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इंडिकेटर, यू विल हैव टू कीप दैट लॉन्ग टर्म पेशेंस. तो फिर हमारा डिबेट फिर वो इंट्राडे वालों के साथ और हफ्ते भर में मेरे को सर करने का है, मेरे को 15 दिन के लिए करना है, उससे यू हैव टू कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस. तो हमारे व्यू से आप वो सब कंपेयर मत करो. हम आपको क्या बोल रहे हैं, 4 साल से बैंक निफ्टी ने निफ्टी के अगेंस्ट में नया हाई बनाया ही नहीं है ऑन द रेशियो. ओके, सो निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी is underperforming Nifty for the last 4 years, which is not a small shitty reading. It's a जिसको समझ में आता है ना, for an experienced eye, it's a very very important reading. Now tomorrow if that divergence goes, means बैंक निफ्टी रेशियो नया हाई बना लेता है तो ठीक है ना, then that reading gets ignored. बट जब तक वो रीडिंग है तब तक वो रीडिंग है. और डाउन ने बोला था till the averages are not confirming, you have to be very very alert. तो हम किसी को डरा नहीं रहे, हम सबको यही बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सिग्नेचर्स में बहुत सारे रेड फ्लैग्स या अलर्ट होने के सिग्नल आ रहे हैं, प्रोपाउंडेड बाय एज आई सेड ऑल सीनियर्स इन द इंडस्ट्री. लाइक डाउ थ्योरी सब फॉलो करते हैं. तो जो पुराने समझदार लोग बोल के गए हैं, हम तो खाली उसको रिपीट कर रहे हैं कि भाई रेड फ्लैग्स हैं और एक दूसरे से इंडाइसेस कंफर्म नहीं कर रहे हैं. जैसे आपने भी देख लिया कि भाई मिड कैप इंडेक्स ने निफ्टी के साथ कंफर्म नहीं किया, विच इज डेफिनेटली एरिया टू बिकम अलर्ट. एंड जैसे मैं लास्ट पेज में बोला था कि डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, इफ यू आर अ लो रिस्क ट्रेडर तो 30% कैश पे बैठ जाओ,
suppose assuming I'm just giving, this is not my recommendation, I'm just giving it for the understanding sake, for education sake. आप मॉडरेट रिस्क के प्लेयर हो तो आप 30-40-50% कैश में बैठ जाओ, और आप हाई रिस्क प्लेयर हो जो पूरा इन आउट हो सकता है बाजार से, तो व्हाई नॉट गो 80-100% कैश. आपका दम है, आप 100% कैश में बैठो, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम हो जाएगा भाई? क्या होएगा? थोड़ा पैसा नहीं कमाओगे ना, कैश लेके एफडी कर दो. आपको लगता है कि मेरे को शॉर्ट नहीं करना है, कैश उठाओ, एफडी करो, 8-8.5% तो ब्याज मिल रहा है. आपको लगता है कि अगले साल निफ्टी आपको 10% के ऊपर कमा के दे देगा? 2 साल से तो नहीं दिया है. टॉप म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस देख लो, लास्ट 2 साल का ट्रेलिंग रिटर्न्स तो 8.5, 9, 10 इसके आसपास ही है ना, उससे बहुत ज्यादा नहीं है. और इंडस्ट्री एवरेज तो ले लोगे तो मेरे ख्याल से 10 से कम ही होएगा, 8 से कम ही होएगा. अगर आप टॉप 50 फंड ले लेते हो, 100 फंड ले लेते हो, सारे म्यूचुअल फंड टॉप लार्ज कैप वाले उठा के एक साथ जोड़ दो, 20-25 फंड जो भी हैं, तो आपको दिखेगा कि एवरेज इज बिलो 8%. 2 years रिटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट. और 3-6 महीने 6-12 महीने का रिटर्न तो कुछ का नेगेटिव भी चल रहा है. सो मोरल द स्टोरी कि जब 1.5-2 साल में ऑलमोस्ट एफडी रेट के ही पैसे बन रहे हैं, तो 2023 में ऐसा क्या है कि आप एफडी रेट के बाहर पैसा बना लोगे जब दुनिया भर के रिस्क सामने खड़े दिख रहे हैं. सो मार्केट इन्वेस्टिंग इज अबाउट ऑलवेज अ राइट बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड. तो हर आदमी खुद समझदार है, समझ ले भाई. जिसको लगता है 23 बम्पर ईयर होगा, जाओ भाई, 16% बनेंगे, क्या मतलब निफ्टी 21,500 होगा, आपको लगता है 2023 में तो कर लो. हमें नहीं लगता है अभी फिलहाल कि 21,500 के ऊपर जाएगा. हमें तो नहीं लगता कि 10%. इसी में आपसे एक चीज पूछूं कि नहीं, सुनिए, लेट मी कंप्लीट. मेरा मानना यह है कि 1800 10%, 1800 पॉइंट, यहाँ से 18,500 का हाई मान लेना, 18,800 वाला, तो वहां से और 1800 पॉइंट अपने को चाहिए 10% के लिए. तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि 18,500 में और 1800 पॉइंट 2000 पॉइंट जुड़ेंगे कि बाजार 20,500 भी होगा 2023 में. देन हो गया तो ठीक है, एफडी में तो मैं उतना कमा ही रहा हूँ ना. 20,500 तक अगर मैं अभी कैश बुक कर लेता हूँ 100%, और 20,500 तक मेरे को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उतना तो मेरे का 8% एफडी में भी बन रहा है, 8-10%. उसके बियॉन्ड अगर गया, देन वी से दैट वी हैव लॉस्ट सम मनी. तो वो तो 20,500 के ऊपर, 21,000 के ऊपर सोचेंगे ना कि पैसे नहीं बन पाए यार, एफडी में रह गए. जब तक वो नहीं हो रहा है उसकी चिंता क्यों करने की है? पैसा निकालो, एफडी में डालो, हो गया आपका निफ्टी आपके लिए 20,500 का अगले साल. सुरेंद्र, अभी एचएसएस को सुनते हैं जी. एचएसएस बोलिए. सर, मुझे आपसे आप दोनों से यही सवाल था. एक था कि मुझे ऐसा लगता है आई एम बुलिश ऑन कमोडिटीज. मतलब ये 1 साल के बाद 2024 से मुझे लगता है क्रूड, मेटल्स काफी बुलिश हो सकते हो हम लोग. तो ये सही हो सकता है, मतलब और 6-8 महीने के बाद मेटल्स वर्ल्ड वाइड कमोडिटी में काफी तेजी देख सकते हैं हम. और स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं जब रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए, तभी ऑयल से लेके सब कुछ. एंड आई फील कि ऑयल 250 बैरल भी जाए इन फ्यूचर. 250-300 नहीं लगता है सबको, लेकिन मुझे लगता है, पर्सनल व्यू है. गुड. और कोरोना में जब 135 गया था, तो उसके पहले मैंने ट्वीट किया था ऐसे, मतलब कि वो 40, 50, 60 बैरल पर डॉलर था कि 150 तो 135 जुना है तो काटेगा, उसके बाद डबल भी होगा और 250 भी जाएगा. उसके बिना नई तेजी नहीं आएगी. ठीक है, हो सकता है कुछ कि नहीं, मतलब नहीं, मेरे पास तो अभी कल का भी सोचने का ताकत नहीं है, because there are so many moving parts now. Yes. To hazard a guess, वो कोई एस्ट्रोलॉजर को पूछ लो ना, अच्छा रहेगा. अरे ऋषिकेश जी एंड टू अदर्स लाइक हिम, मैंने खाली उनका भी देख लिया. अगर हमारा काम आपको पसंद आता है और हमसे सवाल आप पूछते हो, तो वी विल लव टू हैव यू ऑन आवर हैंडल ऑल्सो. प्लीज फॉलो आवर हैंडल. सबके हैंडल्स फॉलो करो जो स्पीकर्स आपको अच्छे लगते हैं. तो हमको भी प्रोत्साहन तो चाहिए ना. वी ऑल्सो नीड लिटिल बिट ऑफ एनकरेजमेंट टू कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क. सो आई एम सीइंग लॉट ऑफ पीपल आर बीइंग ऑन द स्पेस एंड लाइकिंग अस, बट फॉलो नहीं कर रहे हैं. सो प्लीज डू फॉलो. मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बट मैं लेट आया ट्विटर पे, तो आई ऑल्सो नीड सम इनकरेजमेंट एंड फॉलोअर्स. चलिए, एचआर सर, परविंदर सर से क्वेश्चन था कि सर, जैसे मैं मैंने आपने 2-3 दिन पहले स्पेस पे कुछ बात कहा था, वो एक लार्जर केक होता है वो पिघलने के साथ वाला एग्जांपल. तो
मेरा क्वेश्चन है कि जैसे स्टॉक का क्वांटिटी तो फिक्स रहता है, समझ लो XYZ कंपनी है, उसका एक क्वांटिटी है कि ये बाजार में इक्विटी उसका 1 लाख है, और समझ लो उसका भाव अभी 100 रुपया है, उसका बाजार में लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर करके समझ लो 200 रुपया हुआ भाव, फिर उसका जो वैल्यूएशन ऑपरेटर हो या कोई भी ट्रेडिंग कर करके समझ लो 1000 रुपये तक ले जाता है, लेकिन उसमें एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो रियल मनी तो उसमें जो 100 रुपये के हिसाब से जो जितना आया है उतना ही है, बाकी का वैल्यूएशन मनी का और ये रियल मनी का क्या गेम होता है इसमें, स्टॉक में या इंडेक्स में? नहीं, आपने बहुत बड़ी बात बोली है। स्पेस पे 600 लोग और हैं तकरीबन, इनको समझना चाहिए। जो आपने बात कही उसको मैं आपके लिए रिफ्रेश कर देता हूँ। द अमाउंट ऑफ स्टॉक विच इज अवेलेबल इज फाइनाइट। मतलब ऐसा नहीं है कि XYZ कंपनी के अनगिनत शेयर पड़े हुए हैं और आपको जितने बटोरने हैं आप बटोर सकते हो। शेयर उतने ही बटोर सकते हो जितनी उसकी इक्विटी है। सो यू हैव राइटली पुट कि देयर इज अ फाइनाइट नंबर टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन अर्न इन वन पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, वो कोई भी हो। तो अज्यूमिंग आजकल एग्जांपल चलते हैं ना कि फला फला स्टॉक में 1 लाख रुपए डाला होता तो आज 300 करोड़ होता। तो आपने राइटली पूछा है, जब उसमें 1 लाख डालने थे ना तो उस समय खाली 20 लाख का माली अवेलेबल था। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 20 लोग ही घुस पाए, तो वो 300 करोड़ खाली 20 लोगों ने ही कमाए। 21वें आदमी के लिए जगह नहीं थी उस दिन जिस दिन ये वैल्यूएशन थे। सो यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि जब राइट अच्छे वैल्यूएशन होते हैं तो जगह भी बहुत लिमिटेड होती है। तो अज्यूमिंग XYZ कंपनी है जिसके 1 करोड़ शेयर है ना, उसमें से 50% तो प्रमोटर, 51% प्रमोटर लेके बैठा है, तो बचे खाली 49 लाख शेयर्स हैं जिसमें लोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ओनली 49 लाख पीपल कैन बाय 1 शेयर ईच, दैट्स इट। अगर कोई 49 लाख 1% एक्स्ट्रा आएगा ना, उसके पास उसके लिए शेयर नहीं है कंपनी को देने के लिए। सो दिस मार्केट इज फाइनाइट, it runs on finite shares, it can run only on a finite valuation, this can never go to infinity। सबको ऐसा लगता है कि शेयर बाजार का मार्केट कैप कुछ इन्फिनिटी तक चला जाएगा और हर आदमी लूट लेगा। वो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि वैल्यूएशन कुछ भी होने दो, शेयर तो लिमिटेड है ना। जिन्होंने ले लिए वो तो बेच नहीं रहे, तो आपको कहां से मिलेगा? तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। या जब उसका राइट वैल्यूएशन था उस दिन, जैसे आपने बोला, बड़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इक्विटी थी पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो जो पहले 20, 25, 100, 200 लोग घुस गए, बस उन्होंने ही कमाया 1 लाख का 300 करोड़। बाकी लोग को वो लॉलीपॉप दिखा दिखा के बाजार में लाया जाता है। वो लॉलीपॉप दिखा दिखा के बाकी लोग बाजार में आते हो, अच्छा 1 लाख का 30 करोड़, चलो लॉलीपॉप हमारे। बट वो लॉलीपॉप अब नहीं मिलेगी, वो लॉलीपॉप खाली दिखाने के लिए होती है, खाने के लिए नहीं मिलेगी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मतलब ये सर जो अभी जो सर कभी कभी आप कहते हो कि अभी मार्केट कैप 375 करोड़ का है, मार्केट इंडियन ट्रिलियन का है, तो इसमें रियल मनी तो इतना है ही नहीं ना, इसे बाकी तो जो जो दूसरा मतलब जो रियल मनी तो इसमें कम ही है ना, बाकी तो सब बबल जैसा है ना मतलब में। नहीं ना, रियल मनी तो प्रमोटर ने जिस समय डाला होगा, रियल मनी तो वही 10 पेड अप ही है या 1 पेड अप है जिसका जो कैपिटल है। रियल मनी तो इनिशियली उतना ही पड़ा ना, बाद में नहीं जो नहीं कंपनी ने मेरा कमा क्वेश्चन लिया। है, नहीं मेरा क्वेश्चन है कि जब से जितने ट्रिलियन की आप ये बता रहे हो, इकोनॉमी बता रहे हो कि इतने स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन है, तो उसमें तो जो भाव बढ़ा बढ़ा के ही वैल्यूएशन बढ़ाया हुआ है ना, बाकी रियल मनी तो इतना आया ही नहीं है ना। हाँ, 300 लाख करोड़ का मार्केट कैप है आपका, दैट डज नॉट मीन कि वहां पे रियल पैसा उतना आया हुआ है। 300 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, रियल मनी विल बी डेफिनेटली लेसर देन, फार लेसर देन दैट 3 लाख करोड़ मार्केट कैप। रियल मनी मतलब इसमें कितने परसेंट होता है इसमें? अब यार वो तो नंबर निकालना पड़ेगा, बट वो कम ही होएगा बस, मार्केट कैप से कम ही होएगा। रियल मनी विल बी लेस देन द मार्केट कैप, दैट मच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड। ओके या कुशल बोलिए ना कुशल भाई। कुशल थैंक यू। राज शेख, राज राज सर ये 2023 के लिए वो मार्केट को ओवरव्यू कैसा रहेगा और कुछ सजेस्ट करेंगे स्टॉक्स का नाम इन्वेस्ट करेंगे? ये अगले महीने करूंगा। ओके सर, थैंक यू। चलिए संजन। संजय जी आपको बोल रहे हो।
हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। तो सुशील जी आए, सुशील जी को बात करने दो। अरे बट आप कौन बोला? ये कौन बोला? संजय नाम के हैं कोई। संजय? शरद भाई एक रिक्वेस्ट है, वो सामर्थ का रिक्वेस्ट है, उसको आप रिमूव करो स्पेस से, उसका हैंग हो गया है, उसको रिमूव करो तो फिर वो री एंटर करेगा। सामर्थ। वो सुशील भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनको फाइनल फिनाले में देता हूँ, तुम तुम्हारा काम करो। चलिए और कौन है? वो समर्थ को आप जरा एक बार एग्जिट करा दो समर्थ को, फिर वो कर दिया। शरद सर प्रणाम। मेरा सवाल सर्वेंद्र सर से है। सर जैसे कि अब ये ईयर कंप्लीट हो रहा है तो 2023 के लिए क्या आपका व्यू रहेगा? और मतलब आप तो ऐसा व्यू तो है, समझ में आ रहा है कि लाइक अभी हमें वैल्यूएशन के हिसाब से डाउनवर्ड है, बट जैसा कि आप बोलते हो कि स्लाइसेस में काट के खाना है पूरा पिज्जा, तो वो स्लाइसेस और लेवल्स क्या रहेंगे 2023 के लिए? नहीं देखिए, जो ट्रेडर है उसके लिए, जो ट्रेडर है मैंने बताया, जो ट्रेडर है एग्रेसिव ट्रेडर है, वो तो भाई चाहिए, उसके पास अगर हिम्मत है तो पूरा कैश पे बैठ सकता है और बाजार शॉर्ट भी कर सकता है। तो और जहां तक मैंने बोला कि मैं यही बोल रहा हूँ कि 2023 में 8-10% रिटर्न बनाने में निफ्टी की शायद बैंड बच जाए, नानी याद आ जाए और शायद वो रिटर्न ना आए। सो उससे अच्छा तो आप एफडी में रह लो, 8-8.5% तो आपको एफडी में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वो व्यू ले सकते हो जो एग्रेसिव साइड में लोग हैं। बाकी जिनको थोड़ा पोर्टफोलियो में हमेशा रहना है, वो एनीवेयर बिटवीन 30 to 50-60% जो जितना कैश रह सके मेरे हिसाब से। इट इज अगेन, दिस इज नॉट माई आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, बट आई एम सेइंग कि जिसको समझ में आता है वो करे। सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दीज आर एजुकेशनल स्पेसेस, सो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बट मुझे लगता है कि 17,400 17,500 पिज्जा का पहला स्लाइस जो है वो 17,400 17,500 है, जिसके लिए आप कहीं 18,500 18,550 के लेवल्स को आप ध्यान रखेंगे। शरद जी आप सर्वेंद्र जी को एक बार ही को होस्ट बना दो, नहीं तो स्पेस क्रैश हो सकता है। नहीं समर्थ आ गया ना, समर्थ आ गया है मेरे ख्याल से। ओके, थैंक यू। तो पहला स्लाइस मेरे हिसाब से 17,400 17,500 है, और बहुत ज्यादा बाजार 18,500 18,550 के ऊपर नहीं जाएगा, और 17,400 17,500 पहले आएगा। दैट इज द होल व्यू राइट नाउ, एंड देन वी विल सी each passing week we will see how we want to stand or kind of fine tune that view further. दूसरा कौन है भाई? चेरी, NLN चारी। सर गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय विशेस फॉर एडवांस न्यू ईयर। मेरा एक क्वेश्चन था, रिसेंटली जापान सेंट्रल बैंक्स ने रेट हाइक किया, उसका इफेक्ट हम पे कितना पड़ेगा, मतलब पड़ सकता है? ऑलरेडी वो प्राइस्ड इन है। और दूसरा है साउथ पेट्रोकेमिकल करके एक शेयर है, उसके बारे में आपका व्यू क्या बनता है? वो साउथ पेट्रो मालूम नहीं है, और बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, उसका असर अपने बाजार में आ गया। अपना बाजार मजबूत है, कुछ भी आएगा गिरेगा नहीं, आंख बंद करके ले लो, मान लाओ। Nothing will affect our market. ओके, थैंक यू वेरी मच। बोलिए और। राज गोनेला, अनम्यूट कीजिए राज गोनेला जी। नील शाह, लोनिस जी आप हाँ जी बोलिए। हाँ जी गुड इवनिंग शरद सर बस मेरे को ये बात पूछनी है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट आज सरकार ने पोस्ट ऑफिस के भी बढ़ा दिए हैं, 8% क्रॉस कर गए हैं, तो आपको लगता है कि कहीं पे भी थोड़ी सुस्ती आ सकती है इकोनॉमी के अंदर? आ गई है यार, आने का बात नहीं है, आ गई है। हेलो सर, तो रिवर्सल हो सकता है सर मार्केट में?
क्या आने दे, किधर से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। हेलो हेलो हाँ हेलो बोलिए सर, रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, आपको लगता है सर? नहीं रिवर्सल नहीं आएगा। अच्छा, वो वाला सिनेरियो नहीं है। नहीं ओके क्रैश हो जाएगा। ठीक है। समर सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मेरा आपसे एक व्यू लेना है। जो पीजी आपने सर बताया था एमएनसी में एबॉट और पीजीएचएच एक मल्टीनेशनल कंपनी के अच्छे शेयर है, तो पोर्टफोलियो स्टॉक में पीजीएचएल सर कैसा है, अगर लेने लायक है? वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो रखने लायक है सर पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप? हाँ जी थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, Ashish here. My question is related to the chemical industry. Tata Chemical क्या अब 1200 जाएगा वापिस? 400 हो जाएगा। खत्म ही कर दिया सर आपने, होप ही खत्म कर दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। अरे Big आप fan of 1 साल पहले देखो ना क्या भाव था। नील भाई, नील शाह। Yeah, hello. Yeah. Question is regarding today's market movement. In final hour, there was a news flash regarding adjustment in China currency market against dollar and euro, which also coincided with the last hour fall in the markets. So, any views on this news? Reason for asking this is, will the effect continue on Monday? Is it possible? सर्वेंद्र जी। अरे भाई, कितना चीज का कितना इफेक्ट होएगा क्या मालूम। इट्स अ इवॉल्विंग सिचुएशन इन ऑल द फील्ड्स। कौन किधर क्या पकड़ेगा। अभी कुछ जापान का आया, सो देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स यार। राइट सर, राइट। ये न्यूज सर आज लास्ट आवर में आया था एंड आल्सो कोइंसाइडेड विद द फॉल इन द मार्केट, सो जस्ट वाज क्यूरियस अबाउट। ये सर्वेंद्र जी, ये जो है वो डॉलर इंडेक्स के हिसाब से ये चाइना का भी इंडेक्स है क्या, ऐसा कोई युआन का? नहीं कोई अब तो जैसे जैसे चाइनीज करेंसी एक्सेप्ट होगी तो बाद में इंडेक्स बन जाएगा मेरे हिसाब से। अभी तो कोई ऐसा लिक्विड इंडेक्स नहीं है। कुछ कहीं चाइना के किसी एक्सचेंज पे कुछ रहेगा तो आई हैव नो आइडिया, बट कोई लिक्विड ग्लोबल एक्सचेंज कोई इंडेक्स नहीं है जो रेनिबी को The ट्रैक news करे। was के they have decreased the weightage इन DXY of what? Of dollar and euro in the Chinese currency basket. आप मुझे अगर वो टैग करके शेयर कर पाए तो मैं पढ़ के उसका जवाब दे पाऊंगा। मैं तो देख नहीं पाया करेंसी मार्केट्स आज, बट अगर आप Sure sir, I will try to share the news with you. आप मुझे मेरे हैंडल पे टैग कर दो। जी सर, या जी। आपका डीएम ओपन है तो मैं आपको डीएम कर देता हूँ, आप मुझे टैग कर दो। नहीं, जी वो जी न्यूज आया ओपन था। है सर। थैंक यू। या राजीव कुमार। नमस्कार भैया, मुझे बेसिकली सुशील भैया से बात कुछ पूछना था। आप पूछिए पूछिए। सुशील भैया नमस्कार। सुशील जी नमस्कार भैया, पूछो। भैया कल मैंने न्यूज मैंने कल न्यूज में देखा था आपकी तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा पूछूं भैया आप ठीक है ये ना? टॉपिक, ये स्पेस का टॉपिक नहीं है, हम निजी वार्ता के लिए अच्छा चलो, अच्छा ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये जानना था ना, अभी आपने टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारा कल ईटी पे बोला कि आप बुलिश हो, तो मुझे उसके बारे में कुछ बता दोगे? हम तो बोले नहीं ईटी के ऊपर में टेक्नोलॉजी पे हम बुलिश है। नहीं, आपने बोला ना टेक्नोलॉजी शॉर्ट नहीं करना है। इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि हम बुलिश हैं, इसका मतलब उस पर हम बेरिश नहीं है। अच्छा
समस्या संसार के साथ ये है कि आदमी कान से सब कुछ सुनता है पर दिमाग से वही समझता है जो समझना चाहता है। सबके जीवन में दुख का एक ही कारण है, हम सब अपनी अपनी कामनाओं को लेकर वासनाओं में बदल चुके हैं और सबकी बुद्धि होते हुए भी काम नहीं करती है। अपन कुछ तो बोला होगा सुशील, नहीं तो ये भाई ऐसा क्यों पूछे तेरे को? मैं आपके जैसे मित्रों को दुखी कर देता हूं कि इतना लंबा बोलता हूं, उसके बावजूद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ट्रेडर की सोचने का तरीका कि उसको कहाँ फंसना है, कहाँ बचना और कहाँ खेलना है, कि भैया अपन को अपनी मेरा काम करने का क्या तरीका है। भैया कोई भी बिजनेस करो, चाहे शेयर बाजार का करो, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस करो, तीन ही चीज है बिजनेस में। रिस्क टेकिंग के तीन ही पिलर है। रिस्क समझ में आती है क्या, यानी कि खिड़की खोल के कब कूदना है, अगर समझ में आता है तो ही वो धंधा करो। शेयर बाजार के अंदर में रोज नया व्यापार है, रोज नया धंधा है, रोज नए शेयर है। जो पैटर्न समझ में आता है कि मेरे को इसमें पकड़ में आ जाएगा कि भैया यहाँ से भाग जाने का टाइम है, तो ही मैं ट्रेड करूंगा, वरना मेरे को कोई, मेरे पिताजी ने ठेका नहीं दिया है कि बेटा आ मरण तुझे मैं प्रतिज्ञा दे रहा हूं कि तुझे रोज निफ्टी का भाव डिसाइड करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कितना घाटा नफा बर्दाश्त करना मेरे लिए उचित है, उसकी समझ होनी चाहिए, रिस्क का मेजरमेंट होना चाहिए। और तीसरी चीज है मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अपनी औकात से बाहर रिस्क जा रही है, सौदा काट दो। तो आईटी के अंदर मेरे को मंदी का व्यापार बिठाने में ट्रैप लगता है कि कोई भी टाइम पे इतना लंबा चपेट में आदमी आ सकता है। आईटी में इतनी वैरायटी के शेयर है, वो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस का चरित्र बिल्कुल अलग है, एलटीआई एलटीटीएस की चार्ट का ही चरित्र अलग है, टेक महिंद्रा की और एचसीएल टेक की रंगबाजी अलग है, वो इंटेलेक्ट सॉफ्टवेयर अलग ही दादागिरी करता है। वो बिरला सॉफ्ट की चार्ट ऐसे लपकने को रेडी है, बिरला सॉफ्ट की चार्ट को देख लेगा तो कोई निफ्टी में मंदी बिलीव नहीं करेगा। तो पूरा सेक्टर अतरंगा हो रखा है। तो आई वर्क बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग कि मेरे को क्या नहीं करना है, और जिस सौदे को मैं रिजेक्ट नहीं कर पाता हूं, whenever I fail to reject an idea, I only take those many few trades. तो आई होप कहाँ चले गए राजीव कुमार जी? मंदी नहीं करनी है आईटी में, मंदी नहीं करनी है। किसी लड़की को मैंने फैसला कर लिया, उसका बाप दाऊद इब्राहिम है, वो लड़की को मैं देखूंगा नहीं, ताड़ी नहीं मारूंगा, इसका मतलब ये थोड़े हो गया कि वो लड़की सुंदर नहीं है। अपने को आईटी की चार्ट में दाऊद इब्राहिम दिखता है। और कोई सवाल है क्या आपका? अभी हम लोगों ने बिरला सॉफ्टवेयर लिया था भैया। तो अच्छा है, चलो गुड फॉर यू। सर गुड इवनिंग सर। शरद सर, मैं एक सॉरी, मैंने आपका लास्ट टाइम भी वेब सेमिनार सुना था सर, मैंने आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया। बस मैं आपसे सर, आपके यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, तो मेरे को बस एक ही बात पूछनी है सर। मैं एक्चुअली ट्रेडर नहीं हूँ, मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ और काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ सर। तो मेरे को थोड़ा सा बस ये जैसे अभी मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, आपने क्रैश की भी बात करी, तो सर मैं नीचे बाइंग करने के लिए वेट करूं कि मैं करंट लेवल पे भी बाइंग, कहीं अपॉर्चुनिटी आती है तो लेता रहूं सर? माल कहीं पे भी मिलता है अच्छे स्टॉक। और बैंकिंग के स्टॉक के बारे में सर आप का क्या व्यू है ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के बारे में सर? आप 1 महीने के बाद में पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको बराबर। अच्छा, और रुक जाओ। ओके, नहीं फिर भी सर आपको प्री बजट, अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है प्री बजट रैली से पहले कर लूं सर? आपको बुक करना है या खरीदना है? सर दो खरीदना भी है और बुक भी कर सकता हूं सर, अगर आप जैसे सुजेस्ट करो सर। अरे यार कंफ्यूज है सर थोड़ा। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, मेरे को खरीदना भी है, और अगर मेरे को किसी सौदे में प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो मुझे बुक कर लेना चाहिए सर। 100%। राइट सर। एक्टिविटी इसके लिए है ना कि आप नफा करो। और ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर सर कैसा लग रहा है आपको? वो अच्छा नहीं लगता।
ओके चलिए और थर्ड आशीष भाई, आशीष मसंद। सर नमस्कार, थैंक यू सर। मैं आपका तीसरा या चौथा स्पेस अभी अटेंड कर रहा हूँ एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो आपका मैं बात सुन रहा था, मेरे को एक बेसिक मतलब एक दो बेसिक क्वेश्चंस ये पूछना है कि अगर जब भी मार्केट फॉल करेगा एंड आई हेयर दैट इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन ऑलवेज बेसिकली, तो ये नॉर्मली कोई पी लेवल्स जैसे मार्केट का कुछ पी लेवल्स होगा, बॉटम्स होगा, कुछ उस लेवल्स पे होगा, उस पे जाके रुकेगा, बिकॉज वी आई एम ए इन्वेस्टर बेसिकली, फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के लिए करते हैं बेसिकली, सो एंड आई कीप ऑन चर्निंग माय पोर्टफोलियो आल्सो. So, what is a good time to kind of maybe what is a good levels to look for कि अभी प्रॉफिट्स तो बुक कर ही रहे हैं हम लोग, मगर what is a good levels to look for कि हाँ इस लेवल पे अब एंट्री हो आ जाए, सिर्फ एग्जांपल 16,000 आ जाए, 17,000 आ जाए, 15,000 आ जाए निफ्टी पे बेसिकली. हाँ मैं आसान कर देता हूँ, 12,000 आएगा तभी ले लेना. अरे सर ओके, मतलब इतना भी चांसेस पॉसिबिलिटी हो सकता है? पॉसिबिलिटी 100% आएगा. आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ जी, उसमें से देखिए क्या कितना स्टॉक 40-50% डाउन है, बता देना मुझे. उसमें करीबन मतलब 40-50 तो नहीं है, कुछ स्टॉक्स हैं जो करीबन 10-12% तक का है, नहीं तो बाकी सब में भी प्रॉफिट चल रहा है. ऊपर से अच्छा ऊपर से, ओके. हाँ डाउन है, मतलब टॉप लेवल से अगर आप देखेंगे तो वो हाँ 30-40% वाले तो होंगे काफी सारे. तो why are you laughing when I say 12,000? अगर आपके स्टॉक गिर सकते हैं 40%, हाँ जी हाँ जी, तो ये निफ्टी क्यों नहीं गिर सकता? ओके ओके चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू. Sir, what is view on USD INR for next 2-3 months? You of Sarvendra, Sushil, myself, somewhere 84-85. Okay. So it will weaken from this level, current level. Yes. शरद जी एक चीज पूछ रहा था सर मेरे को, म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट्स है क्या उसको भी अभी एग्जिट करना बनता है, मैं प्रॉफिट बुक करके बैठ जाए एंड देन लुक एट इट मे बी 1 or 2 months डाउन द लाइन? I wouldn't like to answer this question on your behalf, but okay. if I were to hold, I will get out on Monday morning. Okay. Okay, fine. ठीक है सर. Sir, so I agree with you that what your view about not to, I mean not view, but your conviction that equity market may fall. But what are the alternate investment we need to focus on, because when we are selling we get a good amount of money. Now where do we park that money? Either a liquid fund or debt fund? I mean what would you suggest? Debt fund, FDs, invites, lot of revenues are there. Okay. कितना 400-500 करोड़ है क्या? No, not that much. तो फिर डिफिकल्टी क्या है? With 2 clicks of button you can deploy that much. I agree. And sir, debt fund, do you think that we should invest right now in debt fund, or we should wait for some time because interest rate? Wait. Okay. So for temporary, we can park our money in liquid fund, and then when we see that interest rate cycle is picking up, then we can enter in debt fund. Is that the right approach? Yes. Okay. Thanks. I'm done.
समझ ले कोई। हेलो हेलो। हाय। एक्चुअली मैं शुरू कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने का, तो कहाँ से मुझे शुरू करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अभी मैंने कुछ अमाउंट स्टार्ट किया है म्यूचुअल फंड में, बट जैसा उसमें दिखा रहे थे कि 12%, 15%, बट 1 ईयर हो गया है तो उसमें अभी 2%, 2.5%, 3% का ही प्रॉफिट ऐसा दिख रहा है। हाँ तो वेट करना चाहिए या फिर किसी और म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं और? आप अपने आप ही डिसाइड कर लो ना भाई। ये म्यूचुअल फंड का माजरा है ना, बहुत मुश्किल है यार बोलना। ये कौन बोल रहा है? जल मित्र। क्या प्रॉब्लम था आपको? म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं है इतने? नहीं, रिटर्न अभी 1 ईयर हुआ मुझे उसमें, बट 2%, 3%, 5%, ऐसे 4% ऐसे ही अभी मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है। बट मतलब टोटल उनका प्रॉफिट ऐसा बोल रहे हैं वो कि मतलब 12%, 15%, 20%, 25% तक का। और 2020 से दिखा रहे हैं ना भाई, इसलिए आपको रिटर्न ज्यादा दिखेगा। अगर आपने 2014 से रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया होता तो कुछ नहीं मिलता। अगर आपने 2020 से किया होता तो आपको 4 गुना मिलता रिटर्न। आपका जो पर्सपेक्टिव है, जिस तरह से आपको दिखाया जाता है, दैट इज नॉट द राइट वे टू सी दैट, है ना? ओके, तो उसको कैसे समझना चाहिए? एक मिनट राहुल भाई। यस, गुड इवनिंग सर। एक मिनट राहुल भाई, एक मिनट सर। शरद सर, मैंने आपको कई बार डीएम। एक मिनट राहुल भाई, एक मिनट। जलमित्र, मैं आपको डीएम करता हूँ, उस वहां पर बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ राहुल सिंह बोलिए सर। राहुल जी बोलिए अनम्यूट करके। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए हेलो। बोलिए। अरे हेलो हेलो क्या बोलते हो, बोलो ना, आगे बोलो ना। ओके सर, मैंने गुड इवनिंग, मैंने आपको कई बार डीएम किया है सर। प्लीज रिकमेंड मी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस स्टॉक सर। कई बार मैंने आपको डीएम किया है सर, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। हेलो। बोलिए ना, कोई भी बोलिए प्लीज। प्रेमदान जी। सर मैं ज्यादा तो नहीं हूँ, मैं छोटा मोटा मतलब इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन एक जगह मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया, फ्यूचर रिटेल में। और उसमें मैंने मेरे जो थे 2-1 लाख रुपए मैंने लगा दिए 43 के भाव पे, वो 3 पे आ गया। अब मुझे कुछ इस तरीके का कोई गाइडेंस जिससे थोड़ा थोड़ा करके वापस से अप होऊं कुछ, क्योंकि पत्रकार के रूप में जो जमा पूंजी थी वो उसमें डाल दिया। प्रेमदान जी, शरद सर के जो ट्विटर हैंडल है ना, उसके अंदर आप इफ यू कैन सर्च द ट्वीट्स, देयर आर फ्यू कंपनीज which have been informed to invest for longer term. तो वहां पर आप सिप बेस में इन्वेस्टमेंट करो धीरे धीरे करके, भाई तो आपको रिटर्न मिलेगा। भाई थैंक यू सर। आपके पास पैसा है क्या? थोड़ा बहुत मतलब महीने के 10,000 तक
कर सकते हैं। और कुछ ऐसा भी मेरे एक्चुअली मैंने पीसी ज्वेलर ले रखा था 18 के भाव से, तो उसको अभी जैसे मार्केट डाउन होने लगा तो मैंने उसको 80 पे निकाल दिया, तो वो मेरे पास 1,30,35,हजार रुपए पड़े हैं। वो मैंने 1600 मेरे पास थे शेयर 18 के भाव से, वो अभी मेरे को उसके है कुछ। आप 15 दिन के बाद में स्पेस में आइएगा, आपको मैं बताता हूँ, 1-2 आइटम निकाल के आपको बताता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। वामसी जी। Good evening, sir. Sharad sir and sir. But my question is to Sarvinder sir. Sarvinder sir, actually मेरे को दिख रहा है कि नवंबर 2020 में जो गैप अप हुआ था, I mean 19 तो सॉरी मेरी 11,900 से 12,000 कुछ बीच में, तो वो गैप तो फिल नहीं हुआ था. So is that, I mean, will that gap be filled now? Because according to Sharad sir, now अभी Sharad sir भी बोल रहा है कि 12,000 आएगा. So will that gap be filled up and again चलेगा market? This is my question, sir. सर ये गैप फिलिंग वाला जो सिनेरियो आप पूछ रहे हो, ये तो अब डिपेंड्स हाउ डीप द गैप इज. सम गैप्स गेट फिल्ड, सम गैप्स नाउ माइट नॉट गेट फिल्ड. सो वैसे तो बहुत सारे गैप्स नीचे छूटे हुए हैं. 2013 के भी गैप्स नीचे छूटे हुए हैं. तो सारे गैप्स भरने का व्यू बनाने बैठेंगे तो वो जब भरेंगे तब भरेंगे. बट यू हैव टू गो विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ लॉजिक एंड व्हाट इज द पॉसिबल रिट्रेसमेंट ऑफ द प्रीवियस लेग. तो अभी हमको वो तो गैप तो 98 से भी है ना. एग्जैक्टली. तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि गैप्स तो ऐसे जाने ढूंढने बैठेंगे तो बहुत गैप्स हैं. सो दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट इट. यू हैव टू लुक एट इट कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है. सो वेरी सेफली फॉर एवरीवन द कोविड लो इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्लोबल मार्केट्स बिकॉज इट वाज अ वेरी इमोशनल it was a emotionally charged low and then there's an emotionally charged high. So let's say that COVID low and 2008 fall, these were the two most emotionally charged panic lows in the recent 10-15 years of Indian history and global history also. वो 8 और कोविड का बॉटम सब जगह आपको मिल जाएगा. सो क्योंकि एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जो आप ग्लोबली सब जगह अप्लाई कर सकते हो और वहां से रेफरेंस पॉइंट से देख सकते हो, तो उसको लेना उचित रहेगा. अब हम खाली कोविड लो के हिसाब से चलें तो वी आर द मोस्ट आउट परफॉर्मिंग मार्केट एंड पॉसिबली वन ऑफ द वेरी फ्यू लार्ज कैप वेल लिक्विड मार्केट्स जिसने इस साल ईयरली पॉजिटिव क्लोज दिया है. बाकी जब आप MSCI वर्ल्ड इंडेक्स भी देखेंगे which contains all the global indices in the world, almost all good liquid main names, तो वो भी अभी साल के लिए नेगेटिव बंद हुआ है. ठीक है. वर्ल्ड के मेजर मार्केट्स यूएस सारा साल के लिए नेगेटिव बंद हो रहा है. मतलब अभी तो अभी चलिए बंद हो जाएगा, मोस्टली अज्यूम करते हैं कि नेगेटिव बंद हो रहा है. यूरोप के बहुत सारे इंडेक्स सब साल के लिए नेगेटिव बंद हो रहे हैं. तो जब इस तरह का परफॉर्मेंस सबका रहा है और आप सोचो फिर देन गोइंग बैक टू अगेन टू डाउ थियरी दैट इंडाइसेस शुड कंफर्म, तो कंट्रीज के ऊपर भी लागू हो जाएगा. हमारी ये जो इतनी सारी आउट परफॉर्मेंस है ये किसी इंटरनल कारण से होगी, बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगी. अगर आउट परफॉर्मेंस की है तो अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं. तो जो बाजार है वो दोनों तरफ चलता है. तो अगर आपने ऊपर में आउट परफॉर्म किया है तो देयर कैन बी अ पीरियड जहां आप ग्लोबल मार्केट्स को अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं, और हमने कई बार किया हुआ है. सो बट मेरा पॉइंट है कि अभी मैं आ रहा हूँ आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ. तो मेरा रेफरेंस पॉइंट 2008 के ये कोविड के लो से है, 2020 के लो से है. वहां से मैं लेके चलूंगा तो मैं रिट्रेसमेंट्स पकड़ के चलूंगा. तो अगर रिट्रेसमेंट 1.618 का पकड़ के चले तो अभी वही फिलहाल वही आएगा सर. आई मीन 12,000 तक आएगा आसपास. नहीं, मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ. मैं उस लो से करेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो रिट्रेसमेंट पकड़ने की बात कर रहा हूँ. अगर मैं कोविड लो से करेक्शन पकड़ता हूँ कि कोविड लो से एक मूव खत्म हो रहा है, उसका एक करेक्शन आ सकता है, तो मैं उसको पकड़ के चलूंगा. और मैं ये मान के चलूंगा कि भाई अगर मैं 50% करूंगा तो मैं तकरीबन 13,000 के आसपास आऊंगा. मैं 38% करूंगा तो मैं कहीं 14,500 के आसपास आऊंगा. और किसी कारण से मैंने 61% कर लिया तो मैं कहीं 12,000 के आसपास पहुंचूंगा. सो दीज आर माई नंबर्स. अब 12,000 के आसपास और 13,000 के बीच में, 14,000 के बीच में जो गैप्स हैं, ये इनकी पॉसिबिलिटी भरने की ज्यादा है. उसके नीचे के गैप्स हम बाद में सोचेंगे कि भरेंगे कि नहीं भरेंगे. बट 61% तक का जो एरिया है दैट इज डूएबल. मार्केट ने कई बार उसको किया है. हर 6-7 साल में इंडेक्स एक बार
पिछले स्विंग का 61% रिट्रेस करता है, वो पीछे से हुआ है, तो जो चीज हुई है उसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो 61% तक 11,800 तक जो भी गैप है उनकी भरने की पॉसिबिलिटी है। उसके के नीचे के गैप शायद नहीं भी भरे तो नहीं भरेंगे, तो वी हैव टू इग्नोर दैट फॉर द टाइम बीइंग। पहले 11,800 तो सुन लो, 11,800 12,000 के गैप्स भी कौन सुनने को रेडी है। तो सो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर स्ट्रेट अवे गोइंग टू 11,800, बट आई एम सेइंग अगर भरना है तो वहां तक का यू शुड बी मेंटली ओपन। वो होगा कि नहीं होगा दैट ओनली टाइम विल टेल। क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि अभी जितना भी डाउनफॉल आ रहा है मार्केट में और ऊपर जो 61 का ऊपर नहीं जा रहा है, इट इज गोइंग टू अराउंड 78 का, आई मीन 78 का हो रहा है, आई मीन 78% का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो व्हाई नॉट 78% इन द डाउनफॉल आल्सो? नहीं, व्हाई नॉट, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। नो, शरद सर ने जैसे बोला, इन द मार्केट एवरीथिंग इज पॉसिबल। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जस्ट लाइक हैंग सेंग एंड चाइना broke the covid low, some indices might go and break those covid lows also in future, so we don't know right now. We have to take one step at a time. जैसे मैंने बोला ना, पिज्जा एक, आप तो बोल रहे हो कि भाई 11,000 वो 78% तक का पिज्जा बना रहे हो कि भाई बाजार तो 10,000 के नीचे जाएगा, वो तो बहुत बड़ा स्लाइस है ना। आप छोटे छोटे टुकड़े करके खाओ ना, क्वार्टर एंड क्वार्टर, जो मैं बोलता हूँ 17,400 17,500 तो पहले खेल लो। अगर वो हो गया उसके बाद सोचेंगे क्या करना है आगे का, पहले वो तो होने दो सर। ओके सर, थैंक यू सर। Yeah, Buffet. Yeah, hi. Good evening, sir, all of you. हेलो, हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैं आपकी ब्रॉड पे सेकेंड टाइम आ रहा हूँ। पिछली बार आया था तो मैंने फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में पूछा था एक 2-3 महीने पहले। तो मैंने फैक्ट का एक स्टॉक पूछा था, तो मुझे एक्चुअली उसमें कन्विक्शन था, तो मैंने पोस्ट भी किया था। तो एक्चुअली वो अच्छा चला, मतलब अभी फिलहाल 200 पॉइंट ऊपर है वो, मतलब वो भी अच्छा चला, स्पीक भी बोला था, वो भी अच्छा चला। लेकिन मुझे एक थोड़ा कमेंट मिला कि एक सुमितो केमिकल या कुछ तो स्टॉक है वो भी चलेगा। तो मैं उसी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअली वो किसने दिया है मालूम नहीं पड़ रहा मुझे, क्योंकि वो ब्रॉड में सब लोग हैं। तो उन सर से रिक्वेस्ट है कि वो स्टॉक्स के बारे में कुछ बताए कि कुछ बाइंग करनी है या नहीं। सुमिटोमो केमिकल मैंने ही बोला था भाई। हाँ हाँ, तो आपने ही ये बोला था सर। हाँ, तो इट इज एन एमएनसी हाँ स्टॉक। हाँ ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। फैक्ट बैक तो क्या है, इट विल जस्ट मेल्ट डाउन। एक बार उनकी तेजी खत्म हो गई, वापस जो भाव थे वो 10 साल पहले वाले ही भाव है अभी। देयर इज नो चेंज इन फैक्ट। बराबर है। और फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में क्या ख्याल है सर आपका, मतलब मैं बस आगे सुमिटोमो और बास के अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता। बास और ओके। सुमिटोमो। और आप पिछली बार ये भी मतलब कन्वेंशन में चला था कि गोदरेज एग्रोवेट का भी आपने बोला था, मतलब वो भी अच्छा है। हाँ, तो अच्छा बाइंग करना चाहिए उसमें। सिप ओनली सिप। ओके, चलेगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एक सो साथ मच। डालना है तो एफडी कर लेना। चलेगा सर, थैंक यू। एफडी में रिकरिंग एफडी मत करना। ओके ओके। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू। इंडियन सोल। हेलो एवरीवन। मेरी क्वेरी थी। मैंने एक्चुअली लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 80% अपने मार्केट से निकाल लिए। तो अब मेरे को ये पूछना था कि मतलब वापस डालना तो है, तो उसके कितने इंस्टॉलमेंट्स में डालूं और वेट करूं या स्टार्ट कर दूं नेक्स्ट मंथ से? शरद सर। शरद सर, जो इंडियन सोल जो सर ने बोला है
अभी थोड़ा देर पहले भी, इन्वेस्टमेंट फरवरी या जनवरी एंड से पहले नहीं करना है, उसके बाद रीलुक करना है। तो नेक्स्ट बेसिस में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट बेसिस में आना तो यू विल गुड लुक जनवरी एंड या फरवरी एंड मैक्सिमम, उसके बाद। ठीक है समझ भाई, या थैंक यू। या एनी स्पीकर? या शरद सर, सिगरेट पीने गए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? श्रेय। हाँ बोलिए। हाँ, वो सर्वेज्ञ सर ने वो हैंगसेंग के बारे में मेंशन किया, तो उसमें क्या अभी डेकेडियल अपॉर्चुनिटी दिखता है ऐसा, मतलब इतना नीचे आने के बाद, अगर लॉन्ग अरे टर्म के भाई लिए? भाई 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 भाई, हैंगसेंग में किधर जाता है, अपने को इंडिया का नहीं मालूम है, हाँ, तो काहे को इतना घोड़ा नहीं उड़ाता हैंगसेंग है 20 यार। लेके बैठ जाते ना। बढ़ जा। वही हैंगसेंग 20 में ऐसा, हैंगसेंग 20 में एसआईपी डेफिनेटली चालू कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके, और उसको रिव्यू करते रहो। हैंगसेंग का ईटीएफ है ना, उसमें डाल दो पैसा। हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं, वही। हाँ। या एसआईपी थोड़ा एसआईपी चालू करना चाहिए एंड कीप। क्या एडवाइस देते हो फालतू का यार, जो चीज का पता नहीं है। सर कोई दूसरी जगह जाए उससे अच्छा है हम उसको करना ही है इन्वेस्टमेंट। नहीं करना नहीं है, बस पूछ रहा हूँ, मतलब एडवाइस। अरे इधर टाइम पास के लिए आता है, पूछने को आता है। ब्राजील में करूँ क्या, इक्वेडोर में उन्होंने करूँ मेंशन क्या? किया ना हैंगसेंग का, इसलिए मैं बोला बात। सर वो शंकर भाई तो टर्की घूम रहे हैं और टर्की में इन्वेस्ट कर रहे हैं, करने दो सर, क्या दिक्कत है? वी विल बिकम ग्लोबल सिटीजन्स। चलिए ओके ठीक है, मेरे को और कोई क्वेरी नहीं है। गुड इवनिंग शरद सर, गुड इवनिंग समर जी, गुड इवनिंग सर्वेंद्र जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शरद सर, सबसे पहले तो मैंने 1 महीना पहले आपका एक स्पेस ज्वाइन किया था, उसमें आपने मेरे को एडवाइस दिया था कि ऑप्शन से छोड़ दो करना अगर करते हो तो। सर मैंने आपका वो एडवाइस माना और वो एडवाइस मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो सबसे पहले तो आपको थैंक यू वेरी मच। ओके। और दूसरा सर, मेरे को एक गोल्ड के बारे में एक ओपिनियन जानना था कि आपका गोल्ड के प्राइस को लेके क्या लगता है सर, जैसे अब बढ़ते इंटरेस्ट रेट एक बार पीक आउट कर जाएंगे तो गोल्ड के प्राइस का क्या फ्यूचर है? इंडियन में ऊपर जाएगा। इंडियन में ऊपर जाएगा, तो अगर सर लॉन्ग टर्म के लिए जैसे अगर होल्ड कर रखा है तो अभी भी आगे भी होल्ड करके रख सकते हैं? अरे भाई तेरे को बेचना है तो बेच दे, रखना है तो रख, ऊपर जाएगा इंडिया में उतना। मैंने आपको बोला, अभी आप समझदार हो, क्या करना है वो आपको मालूम। अगर आप ताश खेलते हो, पैसा हार गए तो बेचना पड़ेगा गोल्ड। अगर ताश नहीं खेलते हो तो रखो, गोल्ड रखो, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इट विल बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या नितिन, थैंक यू सर 12 बजे स्पेस बंद करनी है सर। I'll keep it short, but thank you for giving this opportunity to me. First of all, I want to tell I do not attend it regularly, but I keep often listening to the space. It's very informative and very educational. So I have only one question to ask, and it may be answered before I joined in. I think I was looking at one of the business channel today, and what I noticed was that US Dow Jones has actually given a negative return of 15%. Nifty is plus 5%, which is 10%, which creates a gap of almost 15%. Do you think there are two possibilities here? One, Nifty can go down by further 15%, or the other alternate could be that the Dow Jones US market, which is so-called a mother market, can go up 15% and Nifty remains at 18,000. Yeah. So you are saying Dow will follow Nifty?
I'm not. That's what you mean. I'm not saying. I'm saying it's a mother market. Ideally, Nifty should follow the mother market, but it's not following. It's a Yeah. big gap of 15% right now. So there's a possibility that US start to recover and India remains as is at 18,000 levels. India will go into downs. Okay. Nitin bhai, is there any difference between rupee and dollar, or you are just comparing numbers? I'm comparing returns in percentage terms. Returns from the Dow Jones. Percentage terms still will not justify when you are comparing dollar to rupee. No, but in this year, the Nifty went up by 5%. Yeah. And dollar rupee was down by 11%. Are you aware of that? Yes, I'm aware of it. So, what's the point? That way, if rupee becomes 90, we'll have a return in rupees, and in dollar terms, we'll be down by 20%, 30%. Yeah, right. Okay. Thank you. Thank you for the answer. Hello, sir. Huh? Sir, this is Swagat. First of all, thanks all for being awake so much time and helping us. One small clarification, sir, regarding Tata Chemicals. Is it a good stock to invest in a long term, sir? No. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, Raj. Sir, we can end the space. Yes, I think we should. It's a long 3 hours. So, thank you, everybody. See you next week on Friday. And wish you happy New Year. God bless. Thank you. Yeah, here's wishing everyone a very, very happy and prosperous 2023, and hope people have a difference of lens this time, and you are able to make some money by sitting in cash, and for the aggressive guys, maybe shorting also.